guys. Welcome back, me. Welcome to the first session, in fact, and welcome to the first session of RC Fundamentals for the Cat. I know a lot of you guys have been waiting for this session since long now, है ना? हमने कब से हम लोग we have been talking about. Hello, Yo-Yo. How are you? So we've been talking about starting RC Fundamental session since I guess March or April, है ना? Hi, Bhavesh. Hi, Alisha. Hi, Shreyansh. So yeah, so we have been doing that, and it took me a little while because uh, मैं इसको इसको काफी बेसिक से मैं इसको उठाना चाहता था, इसलिए मैं ये देखने में हमें थोड़ा सा ये बेसिकली थोड़ा सा समय इसमें लगा. बट एनी हाउ वी आर हियर नाउ. सो विल जस्ट आपका जैसे ही अभी विल गेट स्टार्टेड. आई जस्ट अपलोड योर बैक. ओके. सॉरी, देयर वाज सम स्लाइड इशू हियर जिसकी वजह से आपका ये एवी अभी एवी चल रहा है. भुवनेश, एवी इज वर्किंग. गुरुजैन, थैंक यू गुरुजैन, थैंक यू सो मच. ऑलराइट, सो okay, so let's get started with this. मैं आपका बस पीपीटी यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ. I'm just uploading your PPT here and we'll get going with this. So guys, देखिए RC fundamentals का जो मैंने सेशन यहाँ पे बनाया है today, this is the session that will be the series that will be continuing, like आपका जो parables का series जैसे continue हो रहा है and जैसे आपका vocabulary का series continue हो रहा है, similarly we'll be continuing this series as well. This series also will be continued for the next few months. We'll be looking at various aspects of solving in RC, मतलब starting from reading the passage, starting from looking at what types of questions do we have, looking at what types of incorrect options there are. And yes, that's true, that's right. There are actually, you know, the even your incorrect options, जैसे कि आप लोग मेरे जो प्लस क्लास में आते हैं आपको पता होगा, हमने we have discussed them, right? When we solve RCs, हम लोग जब RCs अपने solve करते हैं तो you know the error of assumption, error of inclusion, error of exclusion, right? Error of distortion, TBNR, etc., etc., etc. We've discussed all of that, right? So we'll also be talking about, so throughout this RC fundamentals का जो आपका ये पूरा कोर्स है, इसमें हम लोग शुरू करेंगे एकदम बेसिक से, एकदम एकदम ही ज्यादा बेसिक से इसको शुरू करने वाले हैं हम लोग. एंड wait a second, I'm just putting it up. I'm visible, right? It's stuck again now. Is it still stick? Is it still stuck? अभी भी, or can you, or am I आ गया अभी? ठीक है. ओके, आज पता नहीं अलग ही इशू हो रहा है आपका इसमें. तो चलो, नो वरीज. अभी आपका पीपीटी आ जाना चाहिए, सो everything will be fine. So just let me know once you have the presentation on your screen. आपके स्क्रीन पे एक बार प्रेजेंटेशन आ जाए तो मेरे को बता दीजिए, ठीक है? एंड we'll have it. We'll ठीक है. RC fundamentals. All right, ठीक है. All right, perfect. So setting up the context. सबसे पहली बात जो आज हम लोग, आज का सेशन हमारा, आज के सेशन में हम लोग आरसी सॉल्व करना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है. आज का सेशन आपको बहुत ही शांति से, with a lot of patience. I just want you guys to have a lot of patience and just listen to what I'm talking about here. आज का सेशन we are just laying the foundations today, okay? आज का सेशन जो आपका ये पूरा स्टार्ट हो रहा है आरसी फंडामेंटल्स का, मैं जो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, इसका बस एक फाउंडेशन यहाँ पे डाला जाएगा, सो दैट वी नो कि हम लोग क्या करने वाले हैं और किस तरीके से करने वाले हैं. ओके, दैट्स द प्लान हियर. सो just listen to me, and आपके अगर बीच में कोई भी सवाल आते हैं तो मेरे को लेकर let me know in the comment section and लोग I will cater to that. ठीक है? Now for those of you who are new, जिन्होंने मेरा सेशन पहले नहीं देखा है, I'm Anupam Mishra from the batch of 2018. I'm Lucknow. These are my CAT credentials. ये सब बाकी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, and बाकी डिटेल्स भी आप बाद में जाके देख लीजिएगा. ठीक है? All right. So the first thing that we'll be talking about, so guys देखो, कोई भी चीज करने से पहले, अभी मैं आरसी फंडामेंटल्स की बात करने वाला हूँ. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी चीज को, whenever you start any endeavor, when you start, it might be preparing for an exam. अभिषेक एड्रेस में आता हूँ, मैं वो स्पेसिफिक सवालों पे आऊंगा. अभी बस मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ मेरी बात सुने अगले थोड़ी टाइम तक, एंड मैं आपके सारे सवालों का आंसर करूंगा. ओके प्रियांशु, जस्ट लिसन टू मी. सी, एट द स्टार्ट ऑफ एनी एंडेवर, गुड मॉर्निंग प्रियांशु. सो एट द स्टार्ट ऑफ एनी एंडेवर, बी इट आपका स्टार्टअप आप शुरू कर रहे हो, या फिर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप जॉब, whatever you doing, maybe you're trying to learn a sport or anything at all in your life, any kind of endeavor that you're
trying to undertake, what is the first thing that you need to do? सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? What is the first thing that we should be doing? देखिए आज का क्लास थोड़ा सा आपको ज्ञान जैसा लगेगा, मैं आई अंडरस्टैंड कि इट माइट हैव अ वेरी पेडांटिक ओवरटोन टू इट, पेडांटिक ओवरटोन, फंडामेंटल्स मालूम होने चाहिए, विजुअलाइज, यस। तो श्वेता दत्त ने जो बोला वो काफी क्लियर है, काफी नियर है जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसके साथ। There is a saying by, I do not know which great philosopher said this, but someone had said this, Blaise Pascal या किसी ने तो कहा था that you always start with the end in your mind, ठीक है? You always start with the end in your mind. Research and fundamentals ये तो है, देवासी वो सब ठीक है, वो सब है, वो रिसर्च आपको करना है, वो सब कुछ करना है, पर सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग आपके सामने एकदम क्लियर होनी चाहिए, that you always start with the end in your mind. I want to take a very simple and analogy here. मैं आप एक simple सी analogy मैं यहाँ पे use करना चाहता हूँ to help you understand what exactly I mean to say when I say, जब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि you always start with the end in your mind. Okay, so मान लीजिए let's say okay आज देखिए guys, हम लोग आज हर बार जो पैराजिम्बल्स और वोकैबुलरी में हम लोग सीधा क्वेश्चंस में घुस जाते हैं, वैसा कुछ हम नहीं कर रहे हैं। स्टीफन किंग ने कहा था, ओके प्रोबब्ली हम लोग अभी मैं चाहता हूँ अभी आप बस शांति से आराम से जस्ट हैव फन, जस्ट लिसन टू मी। स्टीफन कोवे, ओके स्टीफन कोवे, ओके वही मैं सोच रहा हूँ, स्टीफन किंग तो वो है, ठीक है, तो जस्ट लिसन टू मी, ओके। अभी हम लोग सीधे सवालों पे नहीं जा रहे हैं, अभी ये बस काफी चिल सेशन है, रिलैक्स एंड जस्ट पे अटेंशन हियर। आपके जो भी सवाल इससे रिलेटेड आ रहे हैं वो पूछिए, ठीक है। नाउ लिसन टू मी, देखो मान लीजिए let's say we have a trekker here who for some reason has long hair like me, and he's starting from his base camp, ठीक है, he's starting from his base camp, and the place where he wants to go, where he wants to be is wait एक second, the place where he wants to be is this he wants to get to a mountain. वो अपने बेस कैंप से शुरू कर रहा है, वो उसको सीधा माउंटेन पे जा रहा है। He wants to get to a mountain, he wants to go to the summit, right? He wants to go to the summit. So wait, हाँ, so he wants to go to the summit and like उसको यहाँ से पहुंचना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों के केस में क्या होगा, आप लोगों के केस में समिट क्या होगा, इन योर केस द समिट विल बी क्रैकिंग द कैट, राइट? कैट को क्रैक करना, वो आपका समिट होगा, ठीक है। सो एक तरीका है सोचने का कि यार उसने सोच लिया कि यार ठीक है मेरे को समिट पे पहुंचना है, तो चलो हाँ किसी इन द नेबरिंग विलेजेस ही आस्क्ड क्वेश्चंस, उसने सवाल पूछे कि यार अच्छा यार ये वाला जो केदारकांत था जो पीक है, लाइक वेयर इज दैट पीक, ये पीक किस तरफ आया? लोगों ने बता दिया कि हाँ ठीक है यार आप यहाँ से आगे जाएंगे, ऐसे जाके ऐसे करके जाना, वहां पे आपको मिल जाएगा, ओके। सो नाउ जस्ट सपोज कि while he is on his way, ये यहाँ पे ये रास्ते पे जा रहा है, suppose he does not FMS, in your case FMS, Priyanshu, great. So आप लोगों के केस में this stands for your IIMs और FMS और XLRI, जो भी आपके अच्छे कॉलेजेस आप जाना चाहते हैं, वो सारे के सारे कॉलेज में, सारे कॉलेज यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, बट आप समझ लीजिए कि this is your aim, this is where you want to be, this is where you are, who you are, and we are just drawing this analogy here. Now listen to me, देखो, so when this person starts, he has a vision in his mind कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है। Fair enough. He asks around, सब लोगों को पूछा कि यार यहाँ किसका रास्ता कहाँ से है, जैसे आप लोग हमें पूछते हैं कि हाँ सर यहाँ पे कैसे जाएं, क्या करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। लोगों ने बता दिया कि हाँ ठीक है यार ऐसे करके जाओ। Now, do you think it would be necessary for him to have a compass with him or some sort of a map with him? क्या आपको लगता है कि जरूरी होगा उसके पास कि अगर उसके पास कोई मैप या कंपस हो, क्या ये होना जरूरी है? जरूरी है, राइट? इट डज मेक सेंस कि भाई राइट, ऐसा तो है नहीं कि वहां पे माउंटेन दिख रहा है कि अच्छा घुस दौड़ के बस पहुंच जाओ, राइट? करेक्ट, ठीक है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम हैविंग द मैप एंड द कंपास व्हाटएवर, it is also important is it also important that he has some predetermined targets set up along the way? Is it also important कि उसने अपने रास्ते में ऑलरेडी थोड़े टारगेट्स सेट करके रखे हो ऐसे बीच में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक टारगेट रख दिया कि यार पहले मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है, उसके बाद स्मॉल टारगेट्स, यस एग्जैक्टली, उसके बाद मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है, उसके बाद मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है, एंड उसके बाद मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है, ओके। स्मॉल टारगेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ देर आर, अगर कोई छोटे पड़ाव आप नहीं रखेंगे, अगर आप कोई छोटे पड़ाव नहीं रखते हैं तो क्या होगा, आई टेल यू। अगर आप ना ही आप छोटे पड़ाव रख रहे हो और ना ही आप अपनी प्रिपरेशन को बार बार चेक कर रहे हो, what might just happen is
ऑन हिज वे वो बीच में चेक कर ही नहीं रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, चले जा रहे हैं, बट हिज डायरेक्शन उसका थोड़ा सा गलत हो चुका है, ही हैज गॉन इन द, स्टिल गोइंग इन द डायरेक्शन काफी हद तक सेम है, बट फिर भी ही हैज गॉन डाइवर्टेड, राइट? इट माइट जस्ट हैपन दैट टुवर्ड्स द एंड, नवंबर पहुंचते पहुंचते पता चला कि यार मैं तो, मेरे को आना था यहाँ पे और मैं आ गया यहाँ पे, he was supposed to go here and he ends up here, right? And this is the delta of the error that he has committed, this is the delta of the error that he has committed, जिसकी वजह से वो जहां जाना था वहां नहीं पहुंच पाया, he is actually reached here, okay? Okay, and this is exactly where ये जो चीज है ना, ये जो प्रॉब्लम है, इसको अवॉइड करने के लिए ही आप टारगेट सकते हैं। क्या टारगेट सकते हैं आप? छोटे टारगेट सकते हैं, जो कि आपने अभी बताया मेरे को, यू जस्ट टोल्ड मी, राइट, कि आप अभी भी हैव स्मॉल टारगेट्स, है ना? ठीक है, व्हाट आर दीज? इट शुड, इज इट, इट्स बैक guys, can you, am I audible? क्या हो रहा है आज? Okay, fine, just listen to me. So you might be wondering कि सर ये RC फंडामेंटल से इसका क्या संदर्भ है, क्या रिलेशन है इसका, क्या वास्ता है इसका, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, बट यहाँ पे बस प्लीज ध्यान दीजिए क्या है। केस आप, हमने दो केस लिए। फर्स्ट केस हमने ये लिया जहाँ पे द पर्सन डिड नॉट सेट अप एनी स्मॉल टारगेट्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच ही डिड नॉट नो कि देयर वाज नो फीडबैक मैकेनिज्म, देयर वाज नो फीडबैक लूप कि जिसको मालूम पड़े कि अच्छा यहाँ पे आया तो मेरे को चेक करना है कि मैं उसके पास कोई छोटा पड़ाव था ही नहीं। जब आखिरी पड़ाव आया तो उसने बस चेक किया कि मेरा ये पड़ाव वही है जहाँ पे मैं पहुंचना चाहता था कि नहीं, एंड देन ही फाइंड्स कि ही हैज फेल्ड, ओके, बिकॉज़ इसने कोई छोटे पड़ाव रखे ही नहीं थे, बिकॉज़ he had not made any small goals along the way. Because he had not made any small goals along the way, he came to know about his error at the very end, आखिरी में ही, so he did not get a chance to rectify his methods. अगर इसके बदले केस बी में, let's take a case B, हम लोग केस बी उठाते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे केस बी में इसने अगर ऐसा कुछ किया होता कि केस बी में इंस्टेड अगर उसने ऐसा कर दिया होता कि यार ठीक है, ये मेरा फाइनल टारगेट है, यहां पहुंचने के लिए मुझे इसके 10 दिन पहले मुझे किस सिचुएशन में होना है, if I want to get to Everest 20 days before that I need to get to the base camp, उसके 20 दिन पहले मुझे कम से कम बेस कैंप पे होना है, उसके 15 दिन पहले मुझे कम से कम I have to be in a village that is even low at a lower altitude than the base camp, मान लीजिए, करेक्ट, और उसके पहले मुझे यहाँ पे होना है, करेक्ट, फेयर इनफ, and so on and so forth. So this is how you set up the targets, right? This is how you set up the targets. अच्छा, मुझे ये बताइए, my question to you, all of you, ये टारगेट्स रखते समय आप यहाँ से जाते समय will you set up the targets going forward? आप ऐसे पर्सपेक्टिवली आगे देखते हुए टारगेट सेट करेंगे या फिर आप पीछे देखते हुए टारगेट सेट करेंगे? like will you be looking from where you are, यहाँ से आप टारगेट सेट करोगे, और will you be looking forward, और will you no, या फिर मेरे को लगता है मैंने क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग तरीके से फ्रेम किया, इसलिए आपको ये थोड़ा सा फॉरवर्ड लग रहा है। फॉरवर्ड नहीं, योर टारगेट्स विल ऑलवेज बी सेट लुकिंग बैकवर्ड। सो यू हैव टू, सो दिस आप शुरू हमेशा यहाँ से करोगे, बिकॉज अगर आप फॉरवर्ड टारगेट सेट करोगे, आपने लगा कि यार चलो 10 दिन बाद ये कर लेते हैं, फिर आप अगले महीने तक ये कर लेंगे, फिर अगले महीने ये कर लेंगे, अगले महीने ये कर लेंगे, ओके, बाद में मालूम पड़ा कि यार ये फॉरवर्ड सेटिंग टारगेट्स में तो हम लोग यहाँ पहुंच ही नहीं पाए, फॉरवर्ड सेटिंग टारगेट्स तो हम यहीं तक लेके जा रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली, सो यू ऑलवेज कम बैकवर्ड, आप हमेशा बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं ना, यू बैकवर्ड इंटीग्रेशन आपने सुना होगा, यू ऑलवेज कम बैकवर्ड, आप हमेशा उल्टा आते हैं। कैसे? यू जैसे कि हमने यहाँ पे बताया, माउंट एवरेस्ट पे अगर डे 100 पे माउंट एवरेस्ट पे पहुंचना है तो मुझे डे 80 पे यहाँ पे होना पड़ेगा, डे 60 पे यहाँ पे होना पड़ेगा, 40 पे यहाँ पे होना पड़ेगा, 20 पे यहाँ पे होना पड़ेगा, ओके? हाउ दिस विल हेल्प यू इज ये, अगर आप यहाँ पे पहुंचे, देखो गाइस, यू कैन नॉट, आप एकदम परफेक्ट पाथ तो किसी को नहीं मिल सकता, ओके? इफ यू ट्राई टू इमेजिन, अगर मैं आपका ये कैट बोलूं, अगर मैं बोलूं कि आपका ये कैट का 100 परसेंटाइल है, आप जितना भी आपको परसेंटाइल मानना है, ये आपका कैट का टॉप परसेंटाइल है आपका यहाँ पे, और अगर बोला जाए यहाँ पे, गुड मॉर्निंग ऋषि, अगर आपको बोला जाए, अगर आप मुझे सवाल पूछे कि सर आप मुझे बस एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे दीजिए सारे तीनों सेक्शन में, कि मैं अगर वो सीख जाऊं, भले वो कितनी भी बड़ी लिस्ट हो, तो मैं भले अगर वो सीख जाऊं तो मैंने कैट क्लियर कर लेना है। वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एकदम एग्जैक्ट हाँ बस इतने ही करने, लाइक दे हैव टू बी, ऐसा नहीं कि पूरे दुनिया के सारे सवाल आपको उठा के दे दिए, ऐसे नहीं, like it has to be precise, right? It has to be precise. It cannot be everything in the world, all the maths questions in the world, all the English questions, ऐसा नहीं हो सकता, it has to be precise। वैसी perfect list of questions आपको कोई नहीं दे पाएगा,
No one can give you the perfect list of questions. No one can give you the perfect path. Not me, not any other educator in the world. No one, कोई नहीं दे सकता आपको कि exactly भाई यही list है, इससे करो और आप यहाँ निकल लोगे. ठीक है. तो what I mean to say here is, हाँ, बट आपको मोटे मोटे टारगेट्स मिल सकते हैं कि यार आपका ये क्वांट में इतना होना चाहिए, इसमें इतना होना चाहिए. सो व्हेन यू अचीव गो टू दिस टारगेट, आपने पहला टारगेट अचीव किया, उसके बाद जरूरी नहीं है कि आप तुरंत सीधा यहाँ पहुंच जाएंगे. हो सकता है कि आपका थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा जाके आप यहाँ जाओगे, बट जब ओके मतलब आप थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े चले गए और आप यहाँ पे पहुंच गए, बट व्हेन यू गेट टू द पॉइंट, यू विल बी एट अ पॉइंट वेयर यू कैन जज कि अच्छा यार मैं जहाँ पे पहुंचना था क्या मैं वहां हूँ या नहीं हूँ. नो, देयर इज अ डिफरेंस हियर, देयर इज अ डेल्टा हियर. यहाँ पे एक फर्क आ रहा है ना, यहाँ पे एक फर्क आ रहा है, यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस हियर, एंड दैट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई, दैट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई योर कोर्स करेक्शन. सुना आपने कोर्स करेक्शन? सुना होगा. दैट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू कोर्स करेक्ट एंड गेट्स यू अगेन. तो अगेन फिर आप, so basically how this is supposed to work is, how this usually works is, ये आपका काम कैसे करता है मैं आपको वो बताता हूँ. ये अगर आपके टारगेट्स हैं, आप इसको ऐसे लेके चलते हो. आप पहले टारगेट में यहाँ पहुंचे, वेट क्या हो रहा है ये, हाँ, पहले टारगेट में आप यहाँ पहुंचे. दूसरे में आप यहाँ पे आप टारगेट करो पर आप यहाँ नहीं पहुंच पाओगे, आप शायद तक यहाँ पहुंचोगे. ठीक है, पर आपने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, तो आप थोड़ा सा और ऊपर जाओगे, आप और ऊपर जाओगे, आप वापस से एग्जैक्टली जहाँ पहुंचना था वहां नहीं पहुंचे, पर थोड़ा सा आपको दिखा वापस एरर है, तो आप वापस थोड़ा सा नीचे आएंगे. So this is basically how you'll oscillate and you'll finally get to your cat. The way to success is not so straightforward. It's kind of, it has twists and turns. मेरा पॉइंट ये यहाँ पे ये था यार, मेरा पॉइंट पता नहीं ये पॉइंट कितना ये सब एग्जांपल में खो गया. एंड मेरा पॉइंट बस सिंपल सा है यहाँ पे कि भाई दो केसेस हैं. अगर आप छोटे टारगेट्स नहीं बनाएंगे, अगर आप बैकवर्ड उल्टा देख के टारगेट्स नहीं बनाएंगे, तो ये वाला केस आपका होगा. और अगर आपका उल्टा देख के अगर आप टारगेट्स बनाते हैं तो उसके बाद भी देयर विल बी एरर्स. आप थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा तो जाओगे, बट स्टिल यू विल बी एबल टू गेट टू वेयर यू वांट टू गेट टू एट द एंड ऑफ इट, इफ यू कीप टू द कोर्स, इफ यू कीप ट्रू टू योर कोर्स. अच्छा, ये सब मैं बता क्यों रहा था, ये सब मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि अब अगर मैं आरसी फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ, इफ आई वांट टू टॉक अबाउट आरसी फंडामेंटल्स फॉर द कैट, कि भाई मुझे आरसी फंडामेंटल्स क्या है. मैंने जब खुद ये सीरीज बनाना शुरू किया तो मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए कि आरसी को बेस्ट कैसे पढ़ते हैं, मैं कैसे सोचूं, लाइक हाउ डू यू जज कि ये बंदा आरसी को बेस्ट पढ़ रहा है, ये आरसी को बेस्ट नहीं पढ़ रहा है. कैसे जज करेंगे आप, कैसे जज करोगे? हाउ डू यू जज? यू जज फ्रॉम व्हाट यू वांट टू अचीव. आप क्या अचीव करना चाहते हैं, व्हाट डू वी वांट टू अचीव, दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव. ये है हमारा, ये देख के हमें जज करना है, राइट? 34 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स इज योर स्केल. ये आपका स्केल है, ये आपको स्केल दिखा रहा है कि आपने जितने ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, अगर आपने 30 जितने ज्यादा सवाल आपने 60 मिनट में कर दिए, हाँ, with maximum accuracy and if the maximum number of attempts with maximum accuracy in this out of these number of questions in this amount of time, this is basically going to be what determines, ये चीज आपका determine करेगा कि आप like this should help you conceptualize what should be the best way of approaching. So you always, मैंने आपको क्या बोला, ये आपका ये समिट है. मैंने आपसे बोला ना कि हम लोग उल्टा शुरू करेंगे, राइट? हमें उल्टा शुरू करना है, यहाँ से उल्टा जाना है. तो सबसे पहले वाला जो मैंने आपका चार्ट आउट किया, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. मैंने अब सबसे पहले आपकी चीज ये लिखती है, मैंने सबसे पहली चीज क्या लिखी है, ये क्या है, ओके, ये क्या है, 34 सवाल 60 मिनट में पूरे, हाँ, रिवर्स इंजीनियरिंग, 34 सवाल 60 मिनट में पूरे के पूरे खत्म करना, मोर देन 95% एक्यूरेसी के साथ. टारगेट 95% प्लस रखना है, आगे देखते हैं क्या होगा, देखा जाएगा. ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट, अच्छा, नाउ अब ये तो हमने डाल दिया, ये आपका है 34 इन 60. इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, इसको आपको ब्रेक करना है, इसको एकदम ऐसे नहीं रखना है, इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा. ब्रेक करके क्या करेंगे हम लोग ने, ब्रेक हमने ऐसे किया है. आपको पता है कि आपके कैट के आरसी सेक्शन में यू हैव 24 क्वेश्चंस फ्रॉम आरसीज एंड 10 क्वेश्चंस व्हिच आर नॉन आरसीज, करेक्ट? ठीक है. इसमें आप लोग कैसे करते हैं, लाइक मैं जनरली जो स्प्लिट सजेस्ट करता हूँ, द स्प्लिट दैट आई जनरली सजेस्ट टू पीपल इज usually a 40-20 split. What is a 40-20 split? 40-20 split bole to, when I say 40-20 split, I basically mean that allotting 40 minutes to these 24 questions for RCs and allotting 20 minutes to these 10 questions of non-RC questions. ये आपकी जो 10 non-RC question है उसको 20 मिनट देना और इसको 40 मिनट देना. ठीक है, इसमें वेरिएशंस हो सकता है. For some people who might be facing more difficulty in RCs, जिनको RCs में ज्यादा difficulty हो रहा है, या फिर जिनको नॉन आरसी क्वेश्चंस में ज्यादा लाइक who generally do well in the non RC questions than the RC questions, है ना,
उनके लिए हो सकता है कि दे माइट वांट टू गो फॉर अ 42 और 18 स्प्लिट, या फिर आप इसको यहाँ तक भी ले जा सकते हैं। इनफैक्ट काफी लोग इसमें 45 एंड 15 का भी स्प्लिट करते हैं। सो वेयर 45 क्वेश्चंस 45 मिनट्स आर डेडिकेटेड टू योर आरसी सेक्शन, 45 मिनट आप आरसी सेक्शन पे डालते हैं और 15 मिनट आप किस पे डालते हैं, क्योंकि 15 मिनट्स टू योर नॉन आरसी क्वेश्चंस। इसमें से आपको जो भी उठाना है उठा लो। मैं यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आप लोग अभी सिर्फ आरसी की बात करिए, तो हमने बीआरसी किया है। अभी मैं इसको नैरो डाउन करके, देखो मैं नैरो करते करते ला रहा हूँ आपका, ठीक है। बीआरसी में मैं 34 सवाल 60 मिनट में एक्यूरेसी के साथ, अभी हम लोग आए हैं बीआरसी में से। नाउ वी टॉकिंग अबाउट, हमने इसको डिवाइड किया कि आरसी और नॉन आरसी क्वेश्चंस कितने हैं, टाइम कितना अलॉट करना है। मेरा यहाँ पे अजम्पशन रहने वाला है 40-20 का। माय अजम्पशन हियर इज गोइंग टू बी अ 40-20 स्प्लिट। 40-20 स्प्लिट मींस आई यूजुअली ट्राई या गुरुजन, नहीं I'm alright गुरुजन, थैंक्स फॉर आस्किंग, I'm alright। मेरा बस गला थोड़ा सा हमेशा की तरह खराब है और कोई बात नहीं है। आई यूजुअली ट्राई कि मैं इसमें 40 और 20 वाला स्प्लिट लेके चलूं, व्हिच मींस 40-20 के स्प्लिट का मतलब ये है कि 40 मिनट्स फॉर आरसीज, 20 मिनट्स फॉर नॉन आरसीज। चलो 40-20 को अगर मैं एक स्टेप आगे लेके जाऊं, 40-20 मिनट्स को अगर मैं एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूं, ये है मेरा 40-20 का, ये 24 क्वेश्चंस इन 40 मिनट्स। सो दिस व्हाट इज दिस 40-20 का मतलब क्या हो गया कि मैं 24 सवाल मैं कितने समय में करने की ट्राई कर रहा हूँ, 40 मिनट्स में। ये आपको क्या रेशियो देता है, ये आपको ये क्या रेशियो निकल के आ रहा है, इसमें 24 क्वेश्चंस एंड 40 मिनट्स में 3:5 करेक्ट, 3:5 राइट, 3:5। What does this mean? 3:5 के रेशियोज का मतलब क्या है? रेशियो का मतलब क्या है कि अगर आपका 3 सवाल अगर आपको आंसर करने हैं, हाँ 8 मिनट्स अलग तरीके से आएगा। अगर आपको 3 सवाल आंसर करने हैं, देन आपको you should not be allotting more than 5 minutes to that RC. 5 minutes for 3 questions. That's a बहुत सिंपल तरीका है। एंड अगर आप नोटिस करें आपके कैट में यूजुअली कभी-कभी ब्रेकअप ही अलग भी होता है। आपके कैट में यू यूजुअली हैव आपके 6 क्वेश्चंस के 3 आरसीज आते हैं। यूजुअली गेट 3 आरसीज विद 6 क्वेश्चंस ईच। 3 आरसी आपके आते हैं 6 क्वेश्चंस के, और 2 आरसी आते हैं आपके 3 सवालों के आपके 2 आरसी आते हैं, बेसिकली 5 आरसी। समटाइम्स, हाँ ये मैं मानता हूँ, कभी-कभी ऐसा भी होता है, समटाइम्स इट आल्सो हैपेंस दैट यू हैव 4 आरसीज ऑफ 5 क्वेश्चंस ईच, एंड 1 आरसी ऑफ 4 क्वेश्चन। 4 5s एंड 1 4 का वाला भी सीन होता है। ये भी कभी-कभी, ये आपका 2017 में आई थिंक मुझे लगता है हुआ था, और इन वन ऑफ द कैट्स ये वाला पैटर्न भी आया था। बट अभी के लिए मैं ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपके हमेशा 6 क्वेश्चंस वाले 3 आरसी और 3 क्वेश्चन वाले 2 आरसी आए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ मुझे ये बताइए मेरे को, लाइक हाउ मच। अच्छा बाय द वे, वन मोर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, आप लोग जो यहाँ अटेंड कर रहे हैं, एक और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन गाइस। अगर आप कैट के पैसेजेस को एनालाइज करोगे पिछले 5-6 साल के, नॉट ऑल ऑफ देम, सारे के सारे पैसेज की बात नहीं कर रहा, नॉट 20 years, ओनली द लास्ट 5 years, there's a pattern to the length of the RCs with respect to the questions. आपका usually आपको कैट आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 100 वर्ड्स पढ़वाएगा। It will generally have you read 100 words for every question that you have to solve. 100 words for every question that you have to solve. So more or less you also have an idea about, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा, there'll be some variation, कभी थोड़ा सा प्लस होगा, कभी माइनस होगा, etc. But more or less this is what we have observed in the last 3, 4, 5 years. So your 6 question passages will be of 600 words, 600 words each, and your 3 questions passage will generally be of 300 words each, ठीक है। Okay, हमने यहाँ पे 3:5 का रेशियो निकाला, तो यहाँ पे 6 सवालों के लिए for 6 questions, how much time can we allow ourselves, हम लोग खुद को कितना समय दे सकते हैं, how much time can we allow ourselves for attempting 6 questions? 3 सवालों के लिए 10 मिनट, correct? So the amount of time that you'll be allowing yourself for attempting 6 questions will be 10 minutes. तो आपको ये 3 RC आपको करने हैं जो कि आप 10 मिनट में खत्म करेंगे. There have to be 3 RCs that you'll be finishing in 10 minutes each, and 2 RCs that you should be trying to finish in 5 minutes each. This is what your RC, this is what your goals should, this is what your goals should look like. अभिषेक मैंने बताया ना, अभिषेक मैं बता तो रहा हूँ यहाँ पे आपको, एक आरसी में आप फिक्स नहीं बोल सकते, आपको ये अरविंद आपको ये मिल जाएगा मैन, यू विल गेट दिस। ये आप स्पेशल क्लास अटेंड कर रहे हो, आपको नोट्स डाउनलोड करोगे, उसमें मिल जाएगा ये पीपीटी, आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए अभी। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे बात
मेरा बोलने का मतलब ये, हमने आपका गोल यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, हमने आपका गोल ब्रेक डाउन किया, हम लोग उसको सिंपलीफाई, वी ट्राइंग टू सिंपलीफाई योर गोल। योर गोल वाज 34 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स। उसको हमने, उसमें से हमने सिर्फ आरसी वाला पार्ट उठाया है, 40 क्वेश्चंस 20 मिनट, सॉरी 40-20 पे ब्रेक करके 24 क्वेश्चंस इन 40 मिनट्स। ओके, हाँ हाँ, अभिषेक ऐसा, अभिषेक कभी कभी नहीं नहीं, 2000 आरसी, ये ऐसे वाले आरसी कहीं कहीं पे आते होंगे, पर अगर 2000 वर्ड के आरसी अगर आपको कोई दे रहा है तो वहां पे वो दैट डजंट मेक सेंस। जहां से भी आप सॉल्व करें आपको वहां तक उतने लंबे करने की जरूरत नहीं है। मेरे को नहीं लगता कैट में कोई 2000 वर्ड्स का आरसी कहीं पे आया हुआ है, मतलब एटलीस्ट पिछले 5 सालों के, दिस एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द लास्ट 5 years। ओके, दिस बेस्ड ऑन द लास्ट 5 years, नॉट ऑन द, नॉट ऑन 20 years। हाँ 20 years, हाँ 20 तो अभिषेक, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग मैन, लिसन टू मी। 2000 में, ईयर 2000 इज 20 years ago, तब आपके आरसीज लंबे आते थे, वो आपके तब आरसीज आपके लेंथी आते थे, अभी आपके ऐसे आरसीज नहीं आते हैं। ओके, सो वी हैव टू, यू हैव टू कीप द करंट सिनेरियो इन माइंड। ओके, नाउ पे अटेंशन। सो हमने क्या किया, सबसे पहली चीज हमने देखी भाई, 14 सवाल 60 मिनट में, 24 सवाल 40 मिनट में, 24 क्वेश्चंस 50 मिनट्स। यस यो हम लोग वो भी उठा रहे हैं, हम लोग उसके ऊपर आ रहे हैं, वो सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप मैं वहीं पे आ रहा हूँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। See, I'm trying to just break down the whole thing for you। मैं आपके लिए पूरा ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। 24 सवाल 40 मिनट में आपको करना है, ठीक है। Which means you have to master this। Essentially आपको ये मास्टर करना है, ठीक है। आपका जो आरसी में अभी टारगेट होना चाहिए, आपका आरसी में सिर्फ ये आपके 2 टारगेट्स होने चाहिए और कुछ नहीं। अगर मेरा बड़ा आरसी है तो I'll solve it in 10 minutes। अगर मेरा छोटा आरसी है, if it is 3 questions, I have to solve it in 5 minutes। I have to solve it in 5 minutes। Okay, this has to be your target। नितांशु आई नो दैट। नितांशु, मेरे को जो आप अनअकैडमी वाला जो बता रहे हो ना, मुझे पता है। इनफैक्ट आपके जो आप अगर देखेंगे आपके फरवरी मार्च के अगर जो मॉक्स रहे होंगे, फरवरी मार्च अप्रैल की जो मॉक्स होंगे, वहां पे जहाँ पे बहुत ज्यादा लंबे थे, वहां पे मैंने उनको आई आस्क्ड देम टू शॉर्टन इट। मोर ओवर, मेरी एक और बात सुनिए नितांशु, एक दिस वन मोर थिंग, दिस इज एवरेज, ये एवरेज है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक आरसी आपका 600 वर्ड्स एग्जैक्ट होगा। बहुत बार ऐसा होगा कि देयर विल बी एन आरसी विद 750 वर्ड्स। बहुत बार 750 वर्ड्स का एक आरसी आ गया और दूसरी जगह उसका 450 वर्ड्स का एक आरसी आ गया। ओके, इट विल हैपन वेरी ऑफन, बट दिस इज एन एवरेज, अंडरस्टैंड? ओके, सो हाँ, ऐसे कैसे कैसे बोल सकते हो अभिषेक? दैट्स देखिए देखिए, आप मेरी बात, आप कोई एक पॉइंट को लेके मत पकड़िए, मतलब उस पर रुक जाइए। आप पूरा मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझिए अभिषेक। ओके, सो देख, लिसन टू मी, योर टारगेट हैज टू बी सिंपली दिस। अगर आपको 6 क्वेश्चंस का आरसी आ रहा है, 6 क्वेश्चंस के आरसी को आपको 10 मिनट में सॉल्व करना सीखना है। आपके पास 6 महीने का समय है, यू हैव 6 months ऑफ टाइम विद यू। इफ यू कैन जस्ट एंश्योर दिस, 6 questions 10 minutes, 3 questions 5 minutes, 3 questions 5 minutes, 6 questions 10 minutes। I know it's easier said than done। ये बोलना आसान है, करना मुश्किल होगा शायद, बट ये मैं खुद भी कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। सो ये अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। सो इसमें ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू, ये आपका टारगेट होना चाहिए। योर टारगेट हैज टू बी स्पेसिफिक एंड डिफाइंड। दिस इज योर डिफाइंड टारगेट, दिस इज योर डिफाइंड टारगेट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब मेरी बात सुनिए, अब यहाँ पे मैं एक नाउ यस साक्षी आई एम नॉट टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस। मैं सारी बातें करने वाला हूँ। मैं देखिए, मैं जो यहाँ पे फ्लो लेके चल रहा हूँ बहुत ही सिंपल। मैं आपका सेक्शन में होता क्या है वहां से उठाया, उसमें से हमने उसको भी narrowed it down to, we distilled it down to what exactly is going to be our targets। These are going to be our targets, ठीक है। ये आपके टारगेट्स हैं। अब ये टारगेट्स को करने के लिए क्या करना है वो हमारा नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट ऑल योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड। आपके जो भी लॉजिकल क्वेश्चंस सारे आंसर हो जाएंगे, वो आपको बस यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। एक 600 वर्ड का आरसी, 600 शब्दों का आरसी, 600 वर्ड्स का आरसी एकदम छोटा नहीं होता। ओके, इट्स नॉट, अगर आप जाके अभी अगर आप, इफ आई गिव यू सम पैसेज, अगर आपने बहुत ज्यादा रीडिंग नहीं किया हुआ है, अगर आपको पैसेज मिलेगा अभी 600 वर्ड्स का, आपको सिर्फ वो आरसी पढ़ने में शायद बहुत बार आपको 8-9 मिनट तो उसमें ही लग जाएंगे। ओके, मेनी टाइम्स फॉर मेनी पीपल यू विल टेक, है ना। हाँ, सो श्रेया, मैं वही बता रहा हूँ, श्रेया एंटायर आरसी का जो टाइम है ना वो 10 मिनट है विद क्वेश्चंस, 10 मिनट्स विद क्वेश्चंस। श्रेया, दिस इज विद क्वेश्चन के साथ बोल रहा हूँ मैं। ये 6 वर्ड पढ़ना और सॉल्व करना 6 मिनट 10 मिनट के अंदर है, पढ़ना सॉल्व करना दोनों, और ये इसका पढ़ना सॉल्व करना वापस से 5 मिनट के अंदर है। एंड आई एम नॉट किडिंग, दीज हैव टू बी योर टारगेट्स। जब आप 40 मिनट में खत्म करने का टारगेट करोगे ना,
तब जाके आप, यस, जब आप चाल नहीं नहीं, आई एम श्योर, आई एम नॉट किडिंग, यस। हाँ श्रेयांश, मैं आता हूँ, मैं उन सब पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं सब पॉइंट पे आ रहा हूँ, मैं, मेरे को पता है यहाँ पे बहुत सारे गिले शिकवे हैं, सो उन सबको मैं एड्रेस करूंगा। पर आप टारगेट अगर 40 का नहीं करोगे तो आप इसको 42 मिनट्स तक नहीं खत्म कर पाओगे, आपका ये 50 मिनट्स पे चला जाएगा। अ लॉट ऑफ यू, आपने आपने वीआरसी का टेस्ट दिया हुआ है ना? ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है कि अगर आप सिर्फ आरसी सॉल्व करते चले जाओ तो आपका 50 मिनट तक तो आरसी हो गया, बाकी 10 मिनट मिलते हैं बस, यू जस्ट गेट 10 मिनट्स फॉर दैट हैपेंस, राइट? यू वांट टू अवॉइड दैट, डोंट यू? है ना? अच्छा, मैं आरसी को कंप्रेस ज्यादा इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आरसी में ज्यादा स्कोप है कंप्रेस करने का, because there is a lot of you playing around, you can play around a lot with the RCs। आप वो नॉन आरसी क्वेश्चन में फिर भी आपको स्किप करना, मतलब वो एक क्वेश्चन, इट्स अ होल, राइट? समझे आप? तो आपको 40 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तभी आप इसको 45 के अंदर खत्म कर पाएंगे, समझे? ठीक है, तो इस 40 के टारगेट पे से मैंने ये डिराइव किया है कि आपको एक 6 क्वेश्चन का आरसी 10 मिनट्स, 3 क्वेश्चन का आरसी 5 मिनट्स। अच्छा, अब प्रॉब्लम बहुत सारी आती है। आपने बताया, अभी आपने बोला कि एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आती है, एक्यूरेसी सही करने जाओ तो स्पीड की प्रॉब्लम आती है, स्पीड सही करने आता है एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आती है, करे तो करे क्या, है ना? You forget about other questions, yes, sorry, exactly, that's what I'm saying। So see, मैं यहाँ पे I'm just laying the a backdrop for how these sessions, what we are going to cover in the upcoming sessions। मैं एक ढांचा बना रहा हूँ यहाँ पे, so वो समझिए आप, ठीक है? तो ढांचा बनाने के लिए हम लोग क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहने वाला है भाई, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, 6 क्वेश्चन 10 मिनट, 3 क्वेश्चन 5 मिनट। अब ये हम लोग कैसे करेंगे, कैसे, अब इसमें होता क्या है, देखो कोई भी आरसी को सॉल्व करने के लिए व्हाट आर द फंडामेंटल रिक्विजिट्स? हाँ, I'll address that। हाँ, so I'm addressing that। अभिषेक में वोकैबुलरी वाला क्वेश्चन बताऊंगा। now let's like एकदम सब कुछ शांत कर दो, अब सुनो, एकदम सुनिए आराम से। फंडामेंटल रिक्विजिट्स आरसी में एक्चुअली होता क्या है, आरसी में होता क्या है? सो आरसी, एवरी आरसी, हर एक आरसी में, एवरी आरसी हैज बीन रिटन बाय yes, listen to me, every RC has been written by an author। ऐसे ही तो कहीं से रैंडम लिख के नहीं आ गया, किसी आदमी ने लिखा है, किसी औरत, आदमी, like whatever, all genders, जिसने भी लिखा है, someone has written the RC, correct? someone has written the RC, okay? via the RC या फिर मतलब the passage, the text जो भी लिखा हुआ है, the author is basically trying to convey a set of ideas, okay? Author is basically trying to convey a set of ideas। मैं इसको, let me call this SOI, is basically trying to convey SOI, a set of ideas, ठीक है? ये आइडियाज आपको कभी भी डायरेक्टली नहीं मिलते, है ना? अगर मान लीजिए मैं, मेरे दिमाग में कोई आइडियाज है, unless and until I speak or unless and until I write something down, you cannot, like there's no telepathy, जानते हैं ना क्या होता है? telepathy is basically being able to communicate without having to say anything, right? without having to say anything, आप वैसे communicate, उसको telepathy बोलते हैं, करेक्ट? ठीक है, टेलीपैथी तो काम करती नहीं है यहाँ पे, राइट? सो नो आइडिया कैन बी कन्वेड विदाउट सम मीडियम, राइट? कोई मीडियम के बिना तो आपका कोई भी आइडिया कन्वे नहीं हो सकता, राइट? एंड दिस इज वेयर एग्जैक्टली दिस इज योर मीडियम, ये आपका मीडियम है, ये आपका मीडियम है। इन केस ऑफ योर कैट, ऐसे बाहर अगर आप देखो इन जनरल, तो आपका मीडियम तो समटाइम्स इट्स, लोग पेंटिंग में भी एक्सप्रेस करते हैं, गानों में एक्सप्रेस करते हैं, बहुत कुछ जगह पे एक्सप्रेस करते हैं। आपके कैट के केस में यहाँ पे द आइडियाज व्हिच आर बीइंग एक्सप्रेस्ड are being expressed through this passage that you have here। आपके सामने ये हाइलाइटर दिख रहा है ना, सबको हाइलाइटर दिख रहा होगा, राइट? सो ये मीडियम है, ये आपको ओके, योर ऑब्जेक्टिव ये है आप, दिस इज यू, योर ऑब्जेक्टिव इज सिंपली टू बी एबल टू गेट टू दिस, टू बी एबल टू गेट टू द आइडियाज वाया दिस मीडियम। आपको ये मीडियम के थ्रू आप एंड आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन with one of the students, में अभी मैं कुछ 3-4 दिन पहले, one of the students who has been doing well in RCs, मेरी बात हो रही थी कुछ 5-6 दिन पहले, I was and this ये प्लीज ये बात सुनिए, this is a good case study, listen to this as a case study, इसको एक केस स्टडी की तरह समझिए आप। guys, आपने नोटिस किया, have you guys noticed that sometimes कभी-कभी ऐसे सवाल आते हैं जहां पे आप आंसर, आपने आंसर आपने सही निकाला है, but you're not exactly able to eliminate the other options, but आपको जो ऑप्शन दिख रहा है वो आपको श्योर है, and आपको उसका, and I'm not talking about big selection, मैं big selection की बात नहीं कर रहा, I'm talking, and in fact आपको, like अगर मैं आपको पूछूंगा कि नहीं सर कि श्रेया आपने ये वाला ऑप्शन क्यों श्योर है, तो
तो आपको शायद वो एक्सप्लेन करने में डिफिकल्टी हो. You might have difficulty in explaining why do you think that option is correct, but you're still sure about that option. I'm not talking about all RC. मैं सारे RC questions की बात नहीं कर रहा. I'm talking about just like sometimes it might happen, right? Gut feeling, right? And that's exactly what I was talking about. तो श्वेता, आप जिसको gut feeling बोल रहे हैं ना, ये intuition और gut feeling जो आप बोल रहे हैं ना, I was talking in fact with one of, मैं आपको learner का नाम नहीं बताऊंगा, one of the learners in plus and who usually really good with RCs, who's usually really good with RCs. एंड मैं एक कंसल्टेशन कॉल पे मैं उससे बात कर रहा था एंड आई सो हिज कंसर्न वाज, उसका ये कंसर्न था, उसने मुझसे ये पूछा कि सर मैं आरसीज का सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे सॉल्व हो भी जा रहे हैं, मेरा एक्यूरेसी भी 90% के ऊपर है, बट मुझे ये डर लगता है कि मैं इसका लॉजिक नहीं बता पा रहा हूँ. आई एम नॉट एबल टू लाइक मैं इसका लॉजिक बता पा रहा हूँ बट इट्स नॉट ऑलवेज but the dominating factor is the intuition that I feel कि नहीं आंसर तो यही होगा. is the intuition that I feel कि इसका आंसर तो यही होगा. समझ रहे मेरी बात, समझ रहे आप? ठीक है. so आप लोगों के साथ भी ये हुआ होगा बट बहुत बार नहीं होगा, शायद कम बार हुआ हो, कभी कभी होता हो. इन दिस केस जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ, जिस लर्नर की मैं बात कर रहा हूँ, in most of the cases this is what happens with him. Okay, all right Bhuvnesh, I'll try to keep this in English. Okay, so in most of the cases Bhuvnesh, this is what happened with that particular learner. Wrong. Mahir, I'll come to that. I'll come to that. मेरी बात सुन, please listen to me. This is a very important point here. I'm trying to drive home here. There's a very important point I'm trying to drive home here. You guys have experienced that in sometimes you guys have experienced that. With that particular guy, he has experienced that almost most like majority of the times. It happens with him. He solves the questions almost by intuition. Okay. Not that he's not logically sound. He's logically sound. He's also able to give the answers. He's also able to give the logic why certain options are eliminated and why the option that he thinks correct is correct. But he still feels that the dominating factor is always the intuition part. Okay. Why do you think that is? Okay. Why do you think? And ये मैंने नोटिस किया, अगर मैंने कुछ लर्नर से जो भी मेरी बातें हुई है पिछले एक साल में, मेरी जो भी बातें हुई हैं, what I've noticed is, मैंने एक चीज नोटिस की है, these are the learners, these are the people who are able to get to the set of ideas जो ये medium के अंदर जो भी, like even if this part has like it might have some vocabulary or some sentences, there might be some parts of the passages which they might not have understood verbatim, like line by line उन्होंने हर चीज को समझा होगा ऐसा. They might not have understood each and every line for what exactly it is, but they have been able to understand the gist or the set of ideas that the author is trying to convey very like very accurately. Okay, उसको वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ पाए. समझ रहे आप? So they have been, these are people, the reason is आपको जब भी वो intuition वाला part लगता है ना, you guys also must have noticed whenever you feel that gut feeling or that intuition part, it is usually only in those passages where you have understood the set of ideas which is behind the medium, which underlies the passage very clearly. This is when it happens. Okay. Those are the only cases when it happens. Acha. Now, okay, so now the question arises. हाँ, so Subhansh, that उससे गलत भी होता है काफी बार. I know. हाँ, so उसमें गलत भी होता है. उसमें और भी फैक्टर्स हैं सुभाष, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं. मैं आपको बताऊंगा. I'll talk about that. Now there was this one commonality that I observed. मेरे को एक चीज कॉमन चीज दिखी, ये जो भी मैंने ऐसे लर्नर्स से बात की जिनके केसेस में ये हो रहा है. There was one commonality that I observed in their cases was that these were usually people who were already well acquainted with a lot of ideas across various domains. These are people who have been reading books from diverse topics. वो लोग अलग-अलग, हाँ, genres या जैसे भी आप बोल लो, मैं genres हर जगह लाना नहीं चाहता, genres डाल दो, काफी important है, but मतलब इन्होंने like they're मतलब आप मान लो, आप for example अगर मैं politics की बात करूं, politics में क्या हो सकता है कि what is the major debate in politics? मतलब गिन के आपकी 5 से 6 major debates होंगी, you know, गिन के आपकी 5 से that most of the politics is always about this federalism, decentralization or centralization, various forms of government, socialism, communism, capitalism, right? Inequality,
okay, corrupt politicians. So there is even for every genre, the number of ideas that every genre is made up of. Number of ideas तो बहुत सारे हैं, infinite हो सकते हैं, but the ones that are generally talked about, the ones that generally feature in your write-ups are not many. वो limited हैं. Okay, limited है. उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने, if you have picked up a particular genre and you have done enough reading in that, there's a very good chance, that you might have been exposed to, in the process, to almost 60 to 70% of the ideas that the genre, the content about in the genre is about. मेरी बात समझिए आप? हाँ, ठीक है. सो हाँ, तो मतलब कि मोटा मोटी हो कि यार अगर एनवायरमेंट का पैसे जाने वाला है तो एनवायरमेंट कंजर्वेशन के ऊपर ही पैसे जाने वाला है, और कुछ नहीं है उसमें. ओके, अगर आपका साइंस एंड टेक में पैसे आने वाला है, टेक में समटाइम्स टेक्नोलॉजी पैसे विल बी अबाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, समटाइम्स विल बी अबाउट हार्मिंग द कल्चर, समटाइम्स बिजनेस वाले पैसे जाएंगे तो वो अलग ही आएंगे, उनके भी कुछ सेट रियाम्स होंगे. ओके, so what I'm trying to say here is कि if you want to strengthen that, एक तो आपको ये intuition वाला part अगर आपको strengthen करना है, ये कैसे strengthen करना है? The one of the things that we'll be talking about in these series of sessions, जो आपके RC fundamentals के sessions है, this is one of the things we'll be talking about. एक तो हम लोग ये target करेंगे, पहली चीज, okay? कि आपका हम लोग set of ideas में आपको ideas कैसे जल्दी समझ में आएंगे when you've already gone through those ideas earlier. Right, at least in some form आपको, या फिर उससे proximal ideas आपने अगर देखे हुए हैं, in some proximal ideas you've already gone through them, right? So one part of the passage, one part of these sessions will cater to this. ये आपकी पहली चीज होगी. एक चीज हम लोग जो एड्रेस करेंगे वो ये एड्रेस करेंगे, जिससे कि आपका ये वाला जो पार्ट है, that part where you're able to readily understand what the author is trying to convey, irrespective of what the medium is clear. वो काफी clearly आ जाए. ठीक है, ये पहला हो गया. So I'm just gonna keep a note of this. मैं इसको यहाँ पे नोट करने वाला हूँ. I'm just gonna note this. ये सारी चीजें हमें नोट करनी है. So wait a second. So the first thing जो हम लोग इस कोर्स में, पहली चीज जो हम लोग इस कोर्स में हम लोग देखेंगे, the first thing that we'll be looking at in this course will be ideas across genres. We'll be talking about this. We'll make it a point कि आपके साथ मैं ऐसी एक्सरसाइजेस शेयर करूं जहां पे you get the opportunity to interact and get exposed to ideas across genres, which will increase your chances to be able to relate to the passages that you might confront in your exam. Okay, ये आपके relatability वाले chances बढ़ाएगा. आप जानते हैं relatability, जानते हैं ना क्या होता है? Relative, when you're able to relate to a certain idea जो आपने already देखा हो, relatability. आपको why do you guys think कि हमें Indian authors पढ़ने में आसानी होती है और foreign authors पढ़ने में मुश्किल होती है? Why do you guys think that happens? Why is it always easy to read Indian authors and difficult to read foreign authors? ऐसा क्यों होता है? Why do you guys think that is? Yes, because when an Indian author talks about, when an Indian author says that I was in the first year and I had a crush, and but because I came from a vernacular medium and she was from an English medium, so I was very afraid. You can totally relate to that. ठीक है, तो मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब अगर वो नुक्कड़ की बात करता है तो मुझे मालूम पड़ता है कि Geo connection HMT. I face this up to some. हाँ वही बोल रहा हूँ, right? Familiar words. अगर वो, if the author talks about नुक्कड़ की बात, I know what a नुक्कड़ is. मैं जानता हूँ नुक्कड़ क्या होता है. मैं जानता हूँ चाय पे चर्चा करना क्या होता है. I know those. So when you read Indian authors, the context is familiar. Words तो familiar है ही नहीं तांशु. The context, जो backdrop है ना, visualization is easier. Why is the visualization easier, Samriddhi? The visualization is easier because you've already seen that. You've been in that environment, right? ठीक है. यही चीज हमें आपकी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट, बट सो ऑब्वियसली मैं आपको घुमाने तो ले नहीं जा सकते हम लोग कि चलो फ्रांस घूम ले, इटली में जाके आर्ट्स देख लेते हैं, यहाँ पे जाके हम लोग साइंस एंड टेक जाके लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर देख लिया जाए जर्मनी में. ये तो कर नहीं सकते हम लोग, बट हम जो कर सकते हैं वो ये है, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हैव यू रीड अक्रॉस जॉनरा सो दैट यू कैन गेट दीज आइडियाज. आप ये आइडियाज के साथ एक्वेंटेड हो जाए, आइडियाज के साथ एक्वेंटेड हो. अच्छा, ओके, ऐसा भी होता है, यहाँ पे ये होता है. ओके, सो ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग वी आर गोना बी डूइंग. नेक्स्ट, दूसरी बात आती है, सो सेट ऑफ आइडियाज. दूसरा, द नेक्स्ट पीस ऑफ चैलेंज, दूसरा जो चैलेंज आता है, मेरे इस पे ध्यान दीजिए. दिस मीडियम, ये जो मीडियम दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो मीडियम है यहाँ पे, दिस मीडियम क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. ये मीडियम बहुत बड़ा, काफी बार बहुत बड़ा ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. कैसे? ये मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है, ये मैंने आपसे कोई और क्लास में एक बार शायद पहले डिस्कस किया होगा.
दो तरीके से, in two ways. This medium creates problems in two ways. The first way is obviously something you guys are very familiar with, and जो सबसे पहले कैट उठाते हो VRC करना शुरू करते हो तो पहले दिमाग में यही आता है, vocabulary vocabulary vocabulary. हाँ, कि सारा like it almost seems like कि यार पूरा cat is just about learning words and वहाँ पे word का ही टेस्ट होने वाला है ना. तो पहली चीज जो इसमें आती है वो आपकी vocabulary है ना. Vocabulary. So अगर आपका even if the ideas are relatable, if the vocabulary that is used is comprises of words which are low frequency words, जो आपके शब्द ऐसे हैं जो आपने नहीं सुने हुए हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा. ठीक है, एक तो ये. दूसरा the writing style, the way in which it has been written, the writing style of the author also creates a problem, right? The writing style of the author also creates a problem. एक मिनट. So you have the vocabulary, you have the writing style. Writing style की अगर मैं बोले तो if I talk about writing style, I basically mean there are some authors which there are some authors. मैंने आपको I'll give you some examples tomorrow. कल नहीं, but the next time when we meet in RC Fundamentals 2, I'll give you some examples. There are some authors who write like really lengthy sentences, right? Who are used to writing really lengthy sentences. For them, a paragraph and a sentence is the same. Right? So शशि थरूर में तो वोकैबुलरी वाला पाला जाएगा. नितांशु आप जो बोल रहे हैं, हाँ, शशि थरूर में वोकैबुलरी भी आ जाएगा, राइटिंग स्टाइल में लंबे सेंटेंसेस भी आ जाएंगे, पैसिव वॉइस भी आ जाएगा, right? So whenever your writing style has long sentences, passive voice, and I guess too much of low frequency vocabulary, it becomes difficult to understand, right? तो आपका देखो पहला प्रॉब्लम क्या आपके लिए क्रिएट कर रहा है. पहला प्रॉब्लम क्या है आपका, कहां से आ रहा है, सेट ऑफ आइडियाज से आ रहा है, यहाँ पे एक्सपोजर नहीं है. दूसरा प्रॉब्लम कहां से आ रहा है, वोकैबुलरी से आ रहा है और राइटिंग स्टाइल से आ रहा है, vocabulary and writing style. The second problem that you're facing is you're not used to the medium. The second problem जो मैं यहाँ पे लिख के ला रहा हूँ वो हमारी ये है that you're not used to the medium is basically your English, right? The language. ठीक है, यहाँ पे मैं दोनों चीजें लिख दे रहा हूँ. One is vocabulary and plus the writing style. ठीक है, मैं यहाँ पे बस WS ही लिख रहा हूँ, इसको नोट कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, उसके बाद क्या होता है. ये तो हो गया, दो चीज हमने यहाँ पे नोट की. इसके बाद अच्छा, अभी तक हम लोग कहाँ पहुंचे. सो फार वी आर जस्ट एट, हमने सेट ऑफ आइडियाज देखे, पैसेज देख लिया. आरसी में सिर्फ पैसेज तो होता नहीं. देयर इज वन मोर आइटम देयर. दो चीजें और होती हैं आरसी में पैसेज को छोड़ के. क्या होती है वो, देयर आर टू मोर आइटम्स देयर. वन इज योर क्वेश्चंस, वन आर योर ऑफ कोर्स योर क्वेश्चंस, आपके सवाल होते हैं, है ना. यू हैव योर क्वेश्चंस. There are questions that नहीं हिताक्षी, रेनन मार्टिन, नहीं हिताक्षी, आप मेरे मतलब का मेरी बात का गलत मतलब ना समझे. मैं when I say passive voice बोल रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप ग्रामर में जाके पैसिव वॉइस प्रैक्टिस करो, प्लीज नो. मैं सपने में भी ऐसा नहीं बोलूंगा आपको. ओके, नो, यू नॉट सपोज्ड टू डू दैट. आपको एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं सीखना है, आपको चेंज करना थोड़ी सीखना है. आई एम जस्ट सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग is कि when sentences are in passive voice, it is more difficult to understand because they are lengthier and they are convoluted. That's what I'm saying. मेरी बात समझे आप. So you have to basically get used to reading text which are convoluted. जो कि convoluted हो वैसे वाले देखने हैं. अब मैं आंसर में एक्यूरेसी पे आ रहा हूँ. ठीक है, हाँ, क्लोज ऑप्शंस. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, नेक्स्ट चीज जो आपकी होती है आरसी में, अभी हमने बात किया, वी टॉक्ड अबाउट द सेट ऑफ आइडियाज जो उसको एड्रेस करना है. दूसरा हमें एड्रेस करना है पैसेज के मीडियम को. ठीक है, तीसरा हमें एड्रेस करना है क्वेश्चंस को. वी आल्सो नीड टू एड्रेस क्वेश्चंस. ठीक है, वी आल्सो नीड टू एड्रेस क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम होता है, व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस इन क्वेश्चंस, मेरे को ये बताइए. क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम होता है जनरली. लेट्स सपोज ये आपका सवाल है. लेट्स सपोज यू हैव अ क्वेश्चन हियर. क्वेश्चन में आपकी प्रॉब्लम होता है, मैं आपको बताता हूँ. लेट्स सपोज दिस इज अ क्वेश्चन हियर, ये आपका सवाल आ गया है यहाँ पे. And then you have your options. आपके फिर आते हैं आपको यहाँ पे. I'm just gonna use a different color here. Wait a second. You have your options here. Okay. And then you have your options here. You have 4 options given. आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं. क्लोज ऑप्शन आ रखे हैं. क्लोज ऑप्शन में दिक्कत होती है. ठीक है, नहीं, सिर्फ क्लोज ऑप्शन बहुत तरीके से हो सकते हैं यहाँ पे. बहुत तरीके से क्लोज ऑप्शन हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ. So यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिए. Now
the way in which you have the questions create a problem. क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बहुत सिंपल तरीका। क्वेश्चन एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्वेश्चन का होता ही नहीं है आपका, जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। साक्षी में दो ऑप्शन वाले पे आ रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैं स्टेप देखो, मैं हर चीज स्टेप बाय स्टेप ले जा रहा हूँ। आपका आइडियाज पे आया, उसके बाद पैसेज पे आया, फिर मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा, फिर मैं ऑप्शंस पे आऊंगा, ठीक है। सो नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट क्वेश्चन, यहाँ पे जनरली जब भी आपके एक तो आपके ये वाले क्वेश्चंस होते हैं विच आर एक्सेप्ट एटसेट्रा, जहां पे एक्सेप्ट वाला पार्ट आ जाता है। यू हैव एक्सेप्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट, राइट, ये वाला ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन स्टेम्स दैट आर ट्रिकी, एक्सेप्ट वाला आपको क्वेश्चन स्टेम आ गया, या फिर आपका आ गया कि लाइक क्वेश्चन स्टेम विच इज वेरी, which has a lot of nuances involved. For example, among the following options mentioned, among the following ideas mentioned in the passage, which one of them was the major cause for starting this for least inferred, yes, that contributed to starting the Second World War. Okay, that least contributed to the start of the Second World War. The least contributed आ गया, तो ये फालतू में। सो बेसिकली क्वेश्चंस का एक ही काम है, क्वेश्चंस के द्वारा ये जो क्वेश्चन आई एम टॉकिंग, व्हेन आई से क्वेश्चन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल क्वेश्चन, आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट द क्वेश्चन स्टेम बस पूरे आपके आरसी के क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाता है और कुछ नहीं कर सकता ये। The only thing that a question stem can do is it can just increase the level of complexity. It can just make it more chaotic for you by including words like accept, by including words, terms, phrases like least contribute to the which of the following least contributed to the world war according to the author, or it might sometimes according to the author की जगह वो use कर लेगा according to the XYZ, something कोई XYZ mention किया होगा अंदर पैसेज में, according to the XYZ ऐसे डाल देगा, according to author डाल देगा, right, correct? So that's the only way in which your questions can be made complex or tricky, or can be made they can be making negative on negative phrase, double negative आ जाएगा, right, double negative आ जाएगा। which of the following each of the following is not mentioned in the passage except, each of the following is not mentioned in the passage except, so भरत आप जो बोल रहे हो नेगेटिव पे नेगेटिव is not, एक तो not mentioned in the passage और उसमें भी accept डाल दिया, so a lot of people will trip on that, काफी लोग उस पे ट्रिप कर जाएंगे, समझे आप? so that's one of the ways in which questions can create a problem. That's one of the ways in which questions can create a problem. तो questions के लिए मैं तीसरा जो हमारे लिए आरसी में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, आरसी का, वो होता है आपका क्वेश्चंस की वजह से ट्रिपी, the question stems which are tricky or complex, or I'll just write nuanced question stems. तीसरा जो आपका प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो होता है nuanced question stems की वजह से, करेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन ट्रैप्स, तीसरा आपका इसकी वजह से होता है। एंड the last one, and in fact this is one of the ones which is really important, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है आपका ऑप्शंस, जो आप सभी लोग बोल रहे हैं। आई थिंक ये तो हर किसी के साथ हो चुका है दैट आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस आपने 2 एलिमिनेट कर दिए हो और 2 आपके बाकी हो, उनमें से आपने गलत वाला सिलेक्ट कर दिया। आई थिंक आई कैन ऑलमोस्ट, पता है, ये मैं बोल सकता हूँ कि आज तक कैट की हिस्ट्री में जितने लोगों ने भी कैट का एग्जाम दिया होगा, सबके साथ ये एक बार हो गया होगा, मतलब मतलब कि हाँ, मतलब आई हियर दिस ऑलमोस्ट फ्रॉम एवरीवन कि सर 2 ऑप्शन तो हो जाते हैं, 2 बचते हैं, उसमें से एक गलत वाला एलिमेंट हो, हमेशा गलत वाला मार्क कर देते हैं, राइट, ठीक है। सो ये बट ये इतनी सिंपल चीज नहीं है, ऑप्शंस एज वी हैव, हाँ, इट हैपेंस ऑलवेज, राइट, ऑलवेज, ऑलमोस्ट ऑलवेज, आई नो, मैं जानता हूँ, इट हैपेंड विद मी एज वेल, मैं जानता हूँ, इट्स ट्रू। सो गाइस, सो अब आंसर दोनों में से होता है ना, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो यहाँ पे, इन द जो भी मैं पिछले काफी टाइम से मैं आरसी जो करा रहा हूँ ना, हाँ, सो गुरु जैन, आप जो बात कर रहे हैं, ये वो वाला, ये जो मैंने डोपामाइन इफेक्ट बोला था, एक डोपामाइन इफेक्ट नहीं, एक दूसरा था ये, दिस इज अ फैलेसी गुरु जैन, ये आपका एक ये दिस अ लॉजिकल फैलेसी। ऐसा लगना कि अच्छा लंबा ऑप्शन है तो आंसर सही होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं करना है। अब मेरी बात सुनो गाइस, आई हैव सर्टेन फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑल द आरसीज दैट I've been having students solve in the last couple of years। जो मैंने कितने भी आरसी सॉल्व कराए ना, इतने मैंने खुद के प्रिपरेशन में भी मैंने कभी सॉल्व नहीं किए थे, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने खुद के प्रिपरेशन में भी मैंने इतने आरसी कभी सॉल्व नहीं किए थे जितने मैंने यहाँ पे
आपके यहाँ पे कराते कराते कराए। एंड उससे फायदा ये हुआ है, उससे फायदा ये हुआ है दैट आपके जो ऑप्शन गलत ऑप्शन, यू नो यू हैव दीज रॉन्ग ऑप्शंस, आपके जो गलत ऑप्शन होते हैं, मान लो कि आपके ये जो ऑप्शन है, मान लो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, मान लीजिए आपका करेक्ट ऑप्शन है, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ओके, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, एंड आपके ये बाकी के जो ये तीन है ना, ये आपके गलत ऑप्शन है, मान लो ये आपके गलत ऑप्शन है। आपके ये जो गलत ऑप्शन होते हैं ना, दीज इनकरेक्ट ऑप्शंस, आई जस्ट राइट इट आउट डाउन हियर, इनकरेक्ट ऑप्शंस, there is only a limited number of ways, and yes, I'm not kidding, I think there is only a limited number of ways in which you can form an incorrect option. Okay, आप एक बार, मैंने जितने भी इतने सारे आरसी सॉल्व करके मेरे को बस इतनी चीजें मालूम पड़ी है कि यार आपके इनकरेक्ट ऑप्शंस के भी टाइप्स होते हैं। There are types of incorrect options, and which I think is a very important finding. There are these incorrect options are amenable to types. They can be classified. आप में से जो मेरे प्लस क्लास में आते हैं काफी लोग हैं, आई थिंक प्रियांशु इफ यू देयर, एंड मेनी अदर पीपल आर देयर, राइट? सो तो आपको पता होगा, नैनेश यू देयर, राइट? नैनेश आप भी हैं। सो आपको हमने प्लस क्लास में ये बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। So I think this is a big deal. I also think this is a big deal, especially when it comes to preparing for these exams in a short period of time. जब आपको short period of time में prepare करना है, it always helps to know what not to do. देखो, जिंदगी में हमें किसी को ये नहीं पता होता कि हमें क्या करना चाहिए, वो तो किसी को नहीं पता होगा, और वो पता नहीं कब जाके पता चले, मालूम नहीं। पर अगर आपको बस इतना भी पता चले कि क्या नहीं करना है, तो भी लाइक लाइफ कैन बी स्लाइटली इजियर, थोड़ा सा आसान हो सकता है, चीजें थोड़ी सी तो आसान हो जाएंगी कि क्या नहीं करना है। अगर ये भी श्योर हो जाए, इफ यू कैन जस्ट मैनेज कि भाई ये तो नहीं करना है, दिस इज आई एम श्योर अबाउट, ये तो नहीं करना, कुछ भी हो जाए मैं ये तो नहीं करने वाला, राइट? सो इवन दैट रिड्यूसेस योर कॉम्प्लेक्सिटीज बाय मैनी फोल्ड। ओके, सो सेम चीज यहाँ पे है, सेम चीज यहाँ पे है। करेक्ट ऑप्शन तो ठीक है, बट अगर आप इनकरेक्ट ऑप्शंस को आप उनका क्लासिफिकेशन आप समझ गए कि यार एरर ऑफ अजम्पशंस ऐसे होते हैं, एरर ऑफ इंक्लूजन्स ऐसे होते हैं, एरर ऑफ एक्सक्लूजन्स ऐसे होते हैं, ट्रू बट नॉट रेलेवेंट ऑप्शंस ऐसे होते हैं, एरर ऑफ नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग आपका ऐसा होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। yes, if you remove all the negatives, in most of the cases आपका accuracy एकदम तुरंत करके बढ़ जाएगा। आप elimination plays a big role when it comes to increasing your performance in RC। ये प्लीज आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। So the fourth item that we shall be concentrating on in these classes, जो चौथी चीज इस पे हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे क्लासेस में, वो होगा आपका types of errors और types of incorrect options। मेरी हैंडराइटिंग के लिए मुझे प्लीज माफ करिएगा। You can see how I hate writing. So types of incorrect options, okay? अभी मेरे को ये बताओ, अब इसको छोड़ के कोई प्रॉब्लम आ रही तो मुझे बताइए। मेरे को लगता है कि इस स्लाइड के अंदर, द स्लाइड जो हमारे सामने है ना, ये स्लाइड, इसके अंदर आपका पूरा आरसी खत्म हो जाएगा। आपके जो भी आप ट्राई कर लो, आपको जो डाउट करना डालना डालो आप, या फिर वो इसमें से किसी एक चीज में आपका फिट हो जाएगा। आपके अगर क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, ऑप्शन से रिलेटेड डाउट है कि क्लोज ऑप्शन, वो यहाँ पे आ जाएंगे आपके। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, वोकैबुलरी वाला हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अगर आपको राइटिंग स्टाइल में कोई भी समझ नहीं आता है, बहुत ही मुश्किल पासी लग रहा है, वो आपका यहाँ कवर हो गया। रिलेटेबिलिटी, आइडियाज की बात होगी, वो भी यहाँ पे कवर हो गया। अगर आप ये चार चीजों का ध्यान रख ले तो आपका आरसी गलत कैसे होगा? कॉम्प्रिहेंशन वर्सेस स्पीड, यस। सो मी कॉम्प्रिहेंशन वर्सेस, मैं वही बता रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंशन वर्सेस स्पीड वाला फंडा कैसे आएगा? अब स्पीड बढ़ती है तो कॉम्प्रिहेंशन कम हो जाता है, और कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा रखना है तो स्पीड कम करनी पड़ती है। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, है ना? ये आपका सवाल है। देखो, हाँ बोलिए गुरुजन, प्लीज जो भी डाउट है प्लीज डाल दीजिए इसमें, जो भी डाउट है इसमें डाल दीजिए। देखो, तो आप जो कॉम्प्रिहेंशन और स्पीड की बात कर रहे हैं मीर, यार मैंने स्टार्टिंग में कल की क्लास में मैंने बात की थी। आप लाइक आप एक्यूरेसी, मेरे को ये बताओ, एक्यूरेसी पे फोकस होना चाहिए, एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? या फिर पहले किस पे फोकस करना चाहिए, एक्यूरेसी पे या स्पीड पे? एक्यूरेसी, राइट? एक्यूरेसी, यस, एक्यूरेसी। व्हाई एक्यूरेसी? एक्यूरेसी पे क्यों करना चाहिए? बिकॉज द रीजन व्हाई यू शुड बी फोकसिंग ऑन एक्यूरेसी इज, एक्यूरेसी एक बार आ जाए उसके बाद में स्पीड आ जाएगी, बट स्पीड आने के बाद एक्यूरेसी आए ऐसा नहीं होता। इट डजंट वर्क दैट वे। जब साइकिल चलाना सीखते हो आप, व्हेन यू स्टार्ट टू लर्न टू ड्राइव अ बाइसिकल,
You don't learn to drive bicycle in speed first, है ना? मतलब पहले यार पहले सीधा रेस में कूद जाना ऐसे नहीं, आप पहले देखते कि यार उसको पहले बैलेंस करना सीखते हो। यू फर्स्ट लर्न टू बैलेंस द बाइसिकल प्रॉपर्ली, राइट? उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं। सेम चीज यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको कॉम्प्रिहेंशन और एक्यूरेसी पे यस यस, और उसके बाद फिर हाथ छोड़ के चलाने लगते हैं, फिर मेरा हाथ के भी चलाते हैं। इट्स ऑल उसके बाद आप बाद में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। यू कैन बिकम एक्सपर्ट आफ्टर दैट। बट टू स्टार्ट विद, you always start slow, you get your fundamentals right, you get your fundamentals right, है ना? हाँ, मैं आप सभी के डाउट्स में एक एक करके देख रहा हूँ, ठीक है? तो जो कौन बोल रहा था? whose question was this? मिहिर, आप जो बोल रहे थे कॉम्प्रिहेंशन और स्पीड की बात कर रहे हो ना, मेरा सिंपल सजेशन है मिहिर, पहले आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करिए, आप ये आइडियाज के ऊपर काम करिए, आप रीडिंग थोड़ी सी बढ़ाइए। अभी भी हम लोग मई में, वी आर स्टिल इन मई। अगर ये जुलाई अगस्त होता तो मैं आपको ये नहीं बोलता, ये एडवाइस नहीं देता। अभी भी आपके पास समय है, आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करो, आर्टिकल्स, एसेज, शॉर्ट स्टोरीज, बुक्स एटसेट्रा एटसेट्रा आप रीड कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा नेक्स्ट चीज जो है आपकी, ठीक है, अभी तो और बाद में धीरे धीरे, उसके बाद धीरे धीरे आपका स्पीड अपने आप बढ़ने लग जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा फोर्स करना पड़ेगा, you will have to make mental effort, conscious effort to increase the speed, but it will happen. But first the comprehension should be apt, ठीक है? next question ये था कि साक्षी का सवाल है, I have tried eliminating incorrect option types but paper with the time I forget about all these. So Sakshi, it doesn't happen that way. So साक्षी, ऐसा नहीं होता कि ऑप्शन टाइप खोज के आप एलिमिनेट करो, ये उल्टा होता है। आपको जो ऑप्शन दिखेगा ना कि ये गलत ऑप्शन, आप खुद से आपको देख के क्लासिफाई हो जाएगा कि अच्छा ये एरर ऑफ इंक्लूजन है। अब आप देखो प्रियांशु एंड नैनिश, आई गेस यू गाइस कैन वाउच फॉर दैट, है ना? हम लोग जब सॉल्व करते हैं आरसी, हम लोग जब आरसी सॉल्व करते हैं, इट्स नॉट लाइक कि हम लोग एरर ऑफ इंक्लूजन खोज रहे हैं या फिर हम लोग वैसे खोज रहे हैं। इट्स मोर लाइक कि हम लोग को, आपको जब ऑप्शन गलत दिखते हैं, ओ हाँ देखो यहाँ पे एरर ऑफ इंक्लूजन हुआ, ये देखो यहाँ पे एरर ऑफ डिस्टॉर्शन हुआ, राइट? दैट्स हाउ इट हैपेंस। तो ये वैसे होना चाहिए, ओके? सो ठीक है, नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंड करने में ज्यादातर दिक्कत होती है जिससे आइडियाज समझ नहीं आते। नहीं तो श्रेयांश, आपको बेसिकली श्रेयांश, आप जो बोल रहे हैं ना, आपको 1 and 2 पे काम करना है, आपको आइडियाज भी ज्यादा से ज्यादा रीड करने हैं, आपको आपका वोकैबुलरी, और ये बेसिकली दिस 1 and 2 का मतलब है कि आपको चीजें रीड करनी है एंड डाइवर्स रीडिंग करनी है, ओके? एक्यूरेसी, फिर बिना हाथ पकड़े चलाते हैं, किसी स्पेसिफिक वर्ड का एक्सप्लेनेशन और रिलेवेंस पूछता अकॉर्डिंग टू पैसेज, उसके बारे में थोड़ा किसी स्पेसिफिक वर्ड का एक्सप्लेनेशन और रिलेवेंस पूछता अकॉर्डिंग टू पैसेज, उसके बारे में थोड़ा मैं समझा नहीं। आप क्या गुरुजन आप बोल रहे हो कि स्पेसिफिक वर्ड के बारे में पूछ रहा है? तो हाँ, ओके, सो दोज आर बेसिकली, सो गुरुजन, दोज आर बेसिकली योर पैसेज स्ट्रक्चर क्वेश्चंस, वो आपके पैसेज स्ट्रक्चर क्वेश्चंस है, या फिर आपके, हाँ, तो आपको बेसिकली देखो, that falls in the area of this, वो इस एरिया में फॉल करता है आइडियाज वाले में। तो देखो, कोई भी आइडिया को एक्सप्रेस करने के कोई लिमिटेड नंबर ऑफ तरीके होते हैं, कि या फिर आप कंपैरिजन करके एक्सप्रेस कर रहे हो, या फिर आप पहले हाइपोथेसिस देके बाद में एग्जांपल देके एक्सप्रेस कर रहे हो। तो अगर आपको ये जो पैटर्न्स है, ये पैटर्न्स अगर आपने बहुत ज्यादा आपने काफी रीडिंग कर रखी है, तो आपको वो पैटर्न्स दिख जाएंगे कि हाँ जनरली ओके, यहाँ पे ही इज फर्स्ट, उसने पहले एक नेगेटिव पॉइंट दिया उसके बारे में, उसके बाद उसने उसको काउंटर किया, उसके बाद उसने एक पॉजिटिव पॉइंट दिया वहां पे। You'll be able to see these patterns, but again that requires that you read passages and you read articles. Okay, I'll दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। guys, मेरे को थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि एक्यूरेसी इंप्रूव करने में कैट आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है यार, मेरी ऐसी बात नहीं है। क्यों ऐसा कैट आ जाएगा? हम लोगों ने we have seen wonderful progress, हमने पिछले अभी 2-3 महीनों में काफी प्रोग्रेस देखा हुआ है। ओके, सो बहुत सारी चीजें देखी हुई है, so we are working on that, and ऐसा नहीं है, you have plenty of time, you have more than 100 days man, अभी तो 150 के आसपास ज्यादा दिन है आपके पास, ऐसा नहीं है। this can be worked out. Swamp method, okay Sachin, swamp method, okay Sachin has a good question here. 200 days, 200 दिन के आसपास है ना? यो मैं आपके क्वेश्चन को भी आंसर करता हूँ, क्या है हम लोग आगे, ठीक है? हेमंत का पूर्णिमा अभी नहीं, पूर्णिमा माई I'm just struggling with a little bit of cold, that's it, और कुछ नहीं। दीपांशु एंड पूर्णिमा, थैंक्स फॉर आस्किंग, बट इट विल बी ओके। ये गले बोल के मेरा ये हो जाता है, थोड़ा बहुत दिक्कत ये रहता है। इट्स ऑलमोस्ट बिकम अ, व्हाट डू यू से,
वो उस तरह का एलएस कौन सा होता है, विच इज जो हमेशा रहता है, व्हाट इज दैट कॉल्ड, व्हाट इज द वर्ड फॉर दैट? देखो वोकैबुलरी इसमें खोज रहे हैं हम लोग। अरे भावेश, ऐप टाइटल ऑफ पैसेज का तो मैंने आपको पूरा क्लास, क्रोनिक, क्रोनिक इट डज ऑल्सो बिकम अ क्रोनिक, क्रोनिक इशू। तो कोई नहीं, अभी वो थोड़ा बहुत ब्रेक लूंगा मैं, जब 1-2 हफ्ते का, तब होगा। ठीक, चलो कोई नहीं, अभी मैं स्वॉर्म मेथड की बात कर रहा हूँ। तो सचिन ने एक स्वॉर्म मेथड पूछा हुआ है, गाइस प्लीज पे अटेंशन हियर। सो स्वॉर्म मेथड इज अ मेथड जो मैंने एक सिंपल सा नाम दिया है इसको, आर्टिकल्स को पढ़ने के लिए। आर्टिकल्स अगर डिफिकल्ट आर्टिकल्स है तो उसको पढ़ के आप कैसे समझे, उसके लिए एक स्वॉर्म मेथड है बेसिकली। ठीक है, वो मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ क्या है। सो बेसिकली व्हाट यू सपोज टू डू इन द स्वॉर्म मेथड इज, देखो सिंपल चीज है यार। मान लीजिए आपका ये आर्टिकल है, लेट्स से यू हैव एन आर्टिकल हियर, लेट्स सी यू हैव एन आर्टिकल हियर, ठीक है। अब ये आर्टिकल के अंदर देयर बी सम पार्ट्स ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल के कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जो आपको समझ में आए होंगे, देयर बी सम पार्ट्स ऑफ द आर्टिकल जो आपको समझ में आए होंगे, करेक्ट, एंड कुछ पार्ट्स आपको समझ में नहीं आए होंगे, है ना। अब आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि आप अगर दलदल में फंसे हुए हो, अगर आप दलदल में फंसे हुए, दैट्स व्हेयर द स्वॉर्म कम्स फ्रॉम। स्वॉर्म आपका वहां से आ रहा है। व्हाट्स द लाइक, आप सबसे पहले क्या खोजेंगे, लाइक व्हेन यू स्टक इन अ स्वॉर्म, what's the best thing that you will be looking for? What will you be looking for to get out of the swamp? What will you be looking for? A strong hold. आसपास कोई अगर ऐसी चट्टान है, कोई चट्टान है जहां पे, राइट, some sort of strong hold, जहां पे कोई चट्टान है जहां पे आप उसको पकड़ के निकल सकते हो बाहर, करेक्ट। you'll want to start with that, you'll want to start with that, है ना। क्या हो रहा है ये, हाँ, correct, external help, hold on to something, some sort of support, right? So think of your passage, think of a difficult passage as a swamp। आप ये difficult passage को एक दलदल की तरह समझो, एंड इसके अंदर जो ये आपकी, so there'll be parts in the passage जो आपको समझ में आया अच्छे से, there'll be parts in the passage that you have understood very clearly, there'll be parts in the passage that you have not understood at all, there'll be parts in the passage जो आपने जरा भी नहीं समझे, एंड there'll be parts in the passage जो आपने थोड़े बहुत समझे, मतलब ये जो येलो वाला ना, ये थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत नहीं आया। So okay, समझा। So these are the parts that you have understood very clearly, 1 2 3, okay, these are your strong hold। जैसे आपका अगर आपका दलदल में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है पकड़ने के लिए, वैसे आपके ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है। तो मैं ये बोल रहा हूँ, डिफिकल्ट आर्टिकल्स में आपको क्या करना है, यू रीड द होल आर्टिकल, पहले पूरा आर्टिकल समझ लो और उसमें आइडेंटिफाई कर लो कि आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स कौन से, कि भाई ये और ये चीज तो समझ में आ गई है। जस्ट रीड देम अगेन, उसको एक बार वापस से रीड कर लीजिए, वो स्ट्रॉन्ग होल्ड को एक बार रीड कर लीजिए कि भाई ये चीजें हैं, इसको रीड कर लिया, दैट विल हेल्प यू गेट अ कॉन्टेक्स्ट। उससे आपको एक कॉन्टेक्स्ट और एक संदर्भ मिल जाएगा। उसके बाद देन स्टार्ट रीडिंग द आर्टिकल। देन एक बार आपने जब ये इसको अलग से रीड कर लिया ना, उसके बाद फिर आप वापस से पूरा आर्टिकल जब पढ़ेंगे, व्हेन यू रीड द आर्टिकल फॉर द सेकंड टाइम, यू विल बी एबल टू मेक बेटर सेंस ऑफ दीज एरियाज एज वेल। आप ये दलदल से इस तरह से निकल पाएंगे, बिकॉज नाउ यू हैव सम कॉन्टेक्स्ट। ओके, और क्या नहीं करना होता है दलदल में, क्या नहीं करना होता है, कियोस नहीं करना होता है कि हाँ अरे नहीं आ रहा, मतलब आर्टिकल्स, सो वो नहीं करना होता। सेम थिंग यार, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पता नहीं क्या है, यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे क्या बोला, ये नहीं करना। स्टे काम, जस्ट आइडेंटिफाई द पार्ट्स व्हिच यू हैव अंडरस्टूड, उसको रीड करो अच्छे से, ठीक है, ओके ये समझ में आ गया। एक बार तो पूरा रीड करना है, फिर बाद में जो समझ में आया उसको अच्छे से समझो, और उसके बाद फिर वापस से पूरा रीड करें, ठीक है। आरसी श्रेया, बहुत सारी अलग अलग किताबें हैं यार। सो हाँ, सो किताबें, मतलब द बेस्ट बुक अगर आपको सारे जॉनरेस कवर करने हैं ना, अगर आपको द वन बुक दैट ट्राइज सारे जॉनर, तो कोई एक बुक पे सारे कवर होंगे नहीं, सारे कवर तो होंगे नहीं, बट फिर भी अगर आपको अगर समथिंग, अ बुक दैट कम्स नियर टू कवरिंग ऑलमोस्ट a lot of genres is Sapiens। So you can start with Sapiens। आपने सुना होगा ना ये Sapiens का, युवल नोआ हरारी। You can start with this, okay? ठीक है। हाँ, सो श्रेयांश, आप जो रीडिंग करने से में कंसंट्रेशन नहीं बनता ना, उसका रीजन ये है कि भाई देखो यार, सिंपल चीज है, क्लैरिटी होने के लिए क्या होना चाहिए सबसे पहले। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरे साथ एक ये हुआ था एक बार। मैं एक बार एक बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्लास आज काफी लंबा हो गया, मैं आपको बताता हूँ ये जो श्रेयांश वाला प्रॉब्लम, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम जिसको भी है, एनीवन हु इज फेसिंग द कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, प्लीज लिसन टू दिस, आपको ये समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, सभी को हो रहा है, सुनो मेरी बात सुनो। So I was taking a like this was before I had graduated from Lucknow। लखनऊ में ग्रेजुएट करने से पहले I used to I'd worked with as a maintenance engineer, and after working as a maintenance engineer I started working as a
quant faculty, as a quant faculty for CAT as well as GMAT. So I started off as a quant faculty. So तो मैंने GMAT के classes लेता था. GMAT सुना ना आपने? You guys must have heard of GMAT, right? So ठीक है. So and this was a special batch. ये जो एक batch था, जो batch offline classes की बात कर रहा हूँ मैं. So मैं GMAT के classes लेता था, which was a special batch in the sense that the people who came, the students, they were all older than 35. They were all older than 35. सारे के सारे 35 साल से ऊपर थे. समझ रहे हैं? So I was, मैं अभी 29 मान के चलो, तो 29 मतलब 5 साल पहले मैं अगर बोलूँ तो I probably was 24 or 25. 4-5 साल पहले की बात है. ठीक है. So and these were elders. ये सारे आपके elders थे. ये लोग 35 साल 35 years के ऊपर है. And I'm supposed to teach them, right? Just imagine that. So it was anyways challenging for me कि यार पता नहीं यहाँ पे तो इनको सर करके बोलूँ और वो मुझे सर बोल रहे हैं, like अजीब लग रहा है, अजीब सा. So ठीक है, but वो challenge अलग है, उसके बाद मैं बाद में करूँगा. इनके साथ जो मेरा पहला क्लास हुआ था, the first class that happened with me, that I took for them, इनका जो मैंने पहला क्लास लिया, I was kind of nervous there कि okay यार सारे के सारे बड़े इनके, मुझसे बड़े इनके क्लास में. तो मैं क्लास में गया, I went into the class, मैं क्लास के अंदर गया. And so आप white board जानते हैं ना, पीछे white board होता है, आगे क्लासेस में बैठे हुए लोग white board मार्कर यूज करते हैं, and you rub that, right? So मेरे क्लास के पहले ऑलरेडी एक और फैकल्टी ने क्लास लिया हुआ था, and white board पे काफी चीजें लिखी हुई थी. मतलब the faculty had tried to rub it, फैकल्टी ने उसको मिटाया था, but एकदम अच्छे से मिटा था ऐसा नहीं था. It was not very clear. मतलब उसमें काफी सारा धुंधला लगा हुआ था, ऐसा लग रहा था. ठीक है. So I went into the class, मैं क्लास में गया and मैंने बोला कि so hello everyone, I'm Anupam Mishra, and I started introducing myself. मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि ऐसा है, etc. उन सब ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, ये सब हुआ. स्टार्टिंग की जो बातें होती है वो सब हुई. Then I started talking about, मैंने सीधा स्टार्ट किया प्राइम numbers classification, right? It was numbers का सेशन था, मुझे याद है शायद. So classification of numbers is the first topic जो हम लोग शुरू करते हैं. नहीं, numbers में आपने काउंट किया है आप लोगों ने भी. क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से मैं शुरू करने गया. ओके, नाउ वन ऑफ दीज गाइस, मेरे को नाम उनका अभी भी याद नहीं, मैं प्रतीक वाज द नेम, आई थिंक प्रतीक वाज द नेम. वन ऑफ दीज गाइस, वन ऑफ दीज पर्संस, सर मेरे से बड़े ही थे काफी. उन्होंने बोला कि सर आप प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे. ही टोल्ड मी कि सर मेरी आई हैव वन रिक्वेस्ट. ओके, सो वन ऑफ दीज स्टूडेंट्स हु आर एल्डर देन मी, they have, before while I started teaching, he interrupted me, मेरे को रोका उन्होंने और मेरे को बोला कि सर बस एक रिक्वेस्ट है हमारी. एंड he said that कि सर आप प्लीज ये बोर्ड प्लीज पीछे से पूरा साफ करा दीजिए ना एकदम. You know, please have the board like totally clean, एकदम साफ हो जाए पूरा. थोड़ा सा एकदम like मजा नहीं आ रहा है, like इतना मजा नहीं आ रहा है. एंड मेरे को थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो ऐसा कोई बोले तो अजीब लगता है नहीं कि यार मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ऐसे कैसे बोल रहा हूँ. And like especially when you're immature, especially when you're immature, आपने पढ़ा शुरू किया हो तो वो उस टाइम की so, पर वो तो अलग बात है, वो सब मैंने नहीं दिया. बट उसमें से मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिली. ओके भाई, वो जो स्टूडेंट वहां पे बैठा हुआ है, the student is sitting there, it is in the position of a student. If he wants to understand something new, अगर वो कोई चीज नई चीज समझना चाह रहा है ना, नई चीज समझना चाह रहा है, नई चीज सीखना चाह रहा है, it is very important for the student to have a clean and a blank slate. It is very important for the student to have clarity. It is not just, तो वो सिर्फ सफाई की बात नहीं हो रही है वहां पे, वो सिर्फ सफाई की बात नहीं हो रही कि वो गंदा दिख रहा है. It also talks about the clarity, about having a very blank and clear slate. Okay, I'm fresh, मैं एकदम fresh हूँ और एकदम तैयार हूँ. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? You understand? So मतलब okay, everything okay, like कोई दिमाग में कोई distractions नहीं, कुछ नहीं. It has to be totally clear. Okay, now I'm ready to absorb whatever you want to teach me. I'm ready to absorb whatever you want to teach me. That was the learning that I took from that. And now let me come to किसने सवाल पूछा था, ये concentration का आपने सवाल पूछा था मुझसे, है ना? RCs का आपने मुझे concentration का आपने मुझसे सवाल पूछा. भाई जब आप RCs पढ़ना शुरू कर रहे हो ना, तब भी आपको यही करना है. अगर आपने आरसी पढ़ना शुरू करने से पहले आपका जो दिमाग का योर ब्रेन्स व्हाइट बोर्ड, द व्हाइट बोर्ड ऑफ योर ब्रेन हैज अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन इट कि इंस्टाग्राम पे अच्छा ये था, अरे यार शी वाज लुकिंग रियली गुड, ओके वाओ आई शुड ऐड आई डोंट नो ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ व्हाटएवर, कि हाँ अरे कल ये काम करना है, ओ मैन दैट गाय इज रियली अनोइंग, क्या परेशान करता रहता है, लाइक ऑल ऑफ दिस थिंग्स. इफ योर स्लेट इज नॉट ब्लैंक,
If your slate is not blank, it will not take a lot of effort. मतलब आराम से आप distract होके चले जाएंगे. You need to have a very clear blank slate. You need to have an expectation of okay clarity. ठीक है, चलो अब बताओ क्या बता रहे हो तुम मुझे. That's how you need to read it. That's how you need to start an RC. Okay, if you can ensure this blank slate, you can आपका concentration ऐसे ही बढ़ जाएगा. And it is not easy. It is not easy. समझे आप? So ये आसान नहीं है. So ये मैं अगर मेरे को अगली बार चांस मिला ना तो I'll talk about ed, ego and मैं अब इसकी बात करूंगा. We'll talk about ed, ego and super ego. इसकी बात करेंगे. I'll take a session on. I'll try to take a session on that. So which will help you understand कि मतलब ये काम कैसे करता है. Oh, you're a storyteller, Gurujan. That's great. Wonderful. ठीक है. तो yes, it's really hard. It's not easy. है ना? So बिगिनर्स के लिए आरसी की कौन सी किताब है बिगिनर्स के लिए? आरसी की बहुत सारी किताब है नीता. आरसी की किताब आरसी के लिए यू मीन लाइक सॉल्विंग आरसीज के लिए? हाँ, रिवॉर्डिंग स्ट्रेटजी कैन वर्क. दिस अ बुक. एक देखो, मेरे को एक ही किताब है. मेरे को हमेशा से बस एक ही किताब अच्छी लगी है आरसी में. पूरे मार्केट में जितनी भी किताब है ना, देयर इज ओनली वन बुक दैट आई रियली लाइक्ड. एंड द प्रॉब्लम विद दैट बुक इज कि वो पब्लिश नहीं होती है. मैं फिर भी आपको नाम बता देता हूँ. आपको शायद ऑनलाइन गूगल पे मिल जाएगी. काफी लोगों को गूगल पे मिल गई वो. मैनी लर्नर्स, बहुत सारे लर्नर्स ने पहले सर्च किया था, उनको मिल गई थी. सो द बुक इज टाइटल्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर द कैट बाय सुजीत कुमार. सुजीत कुमार की एक किताब है. सुजीत कुमार की एक किताब है विच इज ओनली लेवल 1, 2, 3, 4 करके सारे आरसीज. बहुत ही अच्छी किताब है, मेरे को बहुत सही लगी थी. सो यू कैन टेक दैट अप. अब अगर उसका पीडीएफ कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको. मेरे को किसी ने तो खोज के एक बार कहीं कुछ भेजा था, बट मेरे पास नहीं है. एंड इवन इफ आई हैड, आई कुड नॉट शेयर इट बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज. आई वुड बी कॉपीराइट वायलेशन अगर मैं पब्लिकली ये शेयर करता हूँ. एरिस्टोटल का भी शायद ठीक है. मैंने एरिस्टोटल का देखा नहीं है. आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट चेक दैट. सो बट यू कैन डू. अगर आरसीज है तो सॉल्व करिए, क्या दिक्कत की बात है ना. तो ये उठा सकते हैं. अच्छा, बाय द वे, वुड यू गाइस वांट टू, अगर आप लोग एक आरसी सॉल्व, मैं आपको एक आरसी मेरे पास है. मेरे को आपका, आई हैव अ गुड आरसी फॉर यू गाइस. मैं आपको गूगल फॉर्म में देता हूं. अगर आपको बाद में सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं. यू कैन सॉल्व इट इन द गूगल फॉर्म. अभी के लिए जस्ट गिविंग इट नाउ. अभी नहीं, मतलब ऐसे ही सॉल्व करने के लिए मैं दे रहा हूं. आई आल्सो वांट टू रन दिस एज अ टेस्ट. मैं इसको एक टेस्ट की तरह भी रन कर रहा हूं. सो ओके, सो चलो, आई विल गिव यू एन इंटरेस्टिंग आरसी. आपको एक अच्छा एक आरसी देता हूँ. एंड वेट, and with that we'll end the class. हाँ, उसके बाद हम लोग क्लास खत्म कर. The type of questions in RC question is changing with time. How true is that? तरुण बोल रहे हैं type of questions change हो रहा है. श्रेया, मुझे अरुण सर का मेरे को आइडिया नहीं है. मैंने वो किताब नहीं देखी उनकी. मैंने इनफैक्ट मैंने थोड़ी बहुत अगर देखी भी होगी तो उसके बाद भी मुझे सुजीत कुमार, आई फाउंड दैट टू बी द बेस्ट. उनकी भी अच्छी होगी. ही मस्ट हैव डन सम वर्क, सो आई एम श्योर. Okay, so type of RC questions are changing. Yes, they are changing in terms of they are more inferential these days, Tarun. They are more inferential these days, and they are what do you say? Not so that, but they are like पिछले 5 साल में सेम रहा है. पिछले 5 साल में कोई चेंज नहीं हुआ है. Yes, हाँ, यो मैं आपके सवाल का, there will be more sessions on RC fundamentals पे और भी सेशन होंगे. तो यो जो आप मुझे सवाल पूछ रहे थे कि what can you expect in these sessions, right? आप पूछ रहे थे, मैं आपको बताता हूँ what you can expect. हमारा पूरा जो आगे का RC fundamentals की जो सेशन होंगे, साइन टीएस सीरीज, हाँ, साइन टी मैं समझा नहीं. साइन टी आप क्या बोल रहे हैं? टेक इट एज सीरीज. हाँ, सीरीज वैसे ही मैं ले रहा हूँ. बट दैट्स द प्लान श्रेयांश. आई हैव टू सी कि कैसे रिस्पांस आता है आप लोगों का, कैसा है उसके. वही मैं, इसलिए मैंने ये पायलट था बेसिकली. सो ये देखिए, तो यो हम लोग जो भी आगे करेंगे ना, वो यहाँ इससे रिलेटेड होगा. सब कुछ आपका इससे रिलेटेड होगा. आई टेक सम सेशंस जहाँ पे मैं यहाँ पे आपको ये आइडिया से इंट्रोड्यूस कराने की ट्राई करूँ. आई टेक सम सेशंस जहाँ पे मैं आपको ये राइटिंग स्टाइल और ये सब बताने की ट्राई करूँ. But majority, a lot of them will be, जहाँ पे लोग RC will be solving some RCs by method of solving some RCs. RC solve करने के माध्यम से हम लोग अलग अलग genres देखेंगे, हम लोग अलग अलग writing style देखेंगे, vocabulary देखेंगे, हम लोग अलग अलग तरह के question stems को note करेंगे, and अलग अलग तरह के incorrect options को भी देखेंगे. So this will be not just ये सिर्फ normal RC solve करने वाला सीन नहीं होगा. यहाँ पे आपका मैं I'll be basically
मतलब हम लोग while solving these RCs will be noting these down, will be noting these down. Yeah, Divyanshu, there is a group, the group है, but मैं आपको link share करना, Unacademy has disallowed it to share any Telegram link, so I cannot do that. Okay, so otherwise मैं आपसे definitely share करता, you can uh, आप मुझे काफी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इफ यू कैन रीच आउट टू मी। अनुपम मिश्रा, आई एम लखनऊ, हॉटस्टार, आप कुछ भी सर्च करें तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अनुपम मिश्रा, हॉटस्टार, आई एम लखनऊ, जैसे भी हॉटस्टार इज द एप्लीकेशन वेयर आई वर्क, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो वहां से आप देख सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, चलिए तो फिर दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड, एंड और कुछ है तो मेरे को बताइए। राजेश कुछ कह रहे हैं आप? I miss someone? Did I miss some any question? I hope I did not miss any questions. Type of questions changing. Okay, ठीक है, नहीं कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। आकाश, एनी क्वेश्चंस, कोई सवाल हो तो मुझे बताइएगा। हिताक्षी, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन डेट कल से है, कल से है गाइज। मेरे सारे सेशन मेरे वेडनेसडे, अभी से आज का सेशन वाज एन एक्सेप्शन, टुडे सेशन वाज एन एक्सेप्शन। ऑल माय सेशंस आर गोना बी ऑन वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे एट 11 AM शार्प। 11 AM शार्प का नहीं पता, बट 11 AM, ठीक है। 11 AM वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थ्रू आउट में, पूरा का पूरा में, ठीक है। ये रहेगा आपका सीन। ऑलराइट, सो दैट्स इट। किसी yeah, this is it, and we'll meet. You can reach out via social media, other Instagram पे आप मुझे पिंग कर सकते हैं, आप खोजेंगे मिल जाएगा, अनुपम मिश्रा 218 218 तो मिल जाएगा। So I can add you to the group if you want, कहीं पे, ठीक है। That's it from my side. Take care. I'll see you guys later. Stay safe and be well. चलो, thank you so much. अच्छा, on your way out अगर आपको सेशन, हाँ नहीं गुरुजन, दैट्स द प्लान गुरुजन, मैं वही देख रहा हूँ। अगर आप लोग का, मेरे को वो थम्स अप थंब डाउन कितना मिल रहा है उसके हिसाब से मैं डिसाइड कर पाऊंगा। सो अगर आपको सेशन सही लगा है तो बाहर वेरी आप क्लास जब खत्म होगा तो उसमें आप थम्स अप एंड थम्स डाउन डाल सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सो यो वो है, वो है यो, आई एम वर्किंग ऑन दैट, यो वो है, ओके, ठीक है। यहाँ पे नहीं, जब व्हेन एंड द सेशन, सेशन एंड करने में जो आता है उसकी बात कर रहा हूँ। चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, ओके। गूगल फॉर्म क्वेश्चंस, कृति आपको गूगल फॉर्म क्वेश्चंस चाहिए, गूगल फॉर्म में आपको करना है तो चलो मैं आपको दे देता हूँ। वेट, एक काम करते हैं, I'll share it in the टेलीग्राम वाला जो, या फिर ऐसा जो लिंक है ना, आप बाद में जब कनेक्ट हो जाएंगे मैं वहां पे शेयर कर दूंगा, बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा है they might not be happy with sharing any kind of links here. They might not be happy with sharing any kind of links here, so I don't want to risk that. So इसके लिए यानी बाद में कर देते हैं, ठीक है। Thank you so much guys, thank you so much. I'll see you guys later. हाँ, क्लास के बाद रिव्यू में, क्लास के बाद रिव्यू में। चलो, थैंक यू सो मच, गुड बाय, बाय 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 बाय। नहीं वत्सला, मैं वही बोल रहा हूँ, आपके टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे मैं शायद कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आप मुझे सोशल मीडिया पे अगर रीच आउट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।